So namaskar dosto, hello and welcome. I can see all our previous participants and happy to see you all on the second last day of this year, 2020. So कैसा गया आप लोगों का 2020? Absolutely fine. Okay, I can see आशिम भाई, तो आशिम कीर्तनिया, तो चलो रेगुलर वी आर इन कांटेक्ट. डैनी वर्गीस, आईपैड, जय किशन जी, हेलो. मालविका अलवाला, मितेश शाह, मितेश भाई केम छो? मुनीर, पार्था माझी जी, डॉक्टर रवि किरण, सर्वानंद जी. Yeah, welcome Sarvanand ji. So I remember I will have to speak in English. Huh? That's good that I have seen your name, right? Very good. Welcome. So I will try to speak majority of today's meeting in English, but at some point, just to clear the stream or dialogue, I will speak few dialogues in Hindi, right? Or we are going to cover majority of the session in English. So Saurabh bhai, Srinivasa, Vijay bhai, Vikas Kumar, Vinod Gojar, Trilok Gupta, everyone welcome. So why we are meeting today? Why? What was the purpose? See, we all learned positional trading, है ना? Few months back, when market was falling, zoom, 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 every month, every day, you were seeing that your shares were falling day by day, week by week, and month by month. Since last 3 years, we have not seen rally. Am I right or wrong? Since last 3 years, we were not able to see the rally, right? So during that time, when we did this positional trading meeting, and you all, everybody have done some homework, right? So we are going to check what you all people have done, right? I think this was around in July. पता नहीं, मेरे को तो याद नहीं है अभी कितना टाइम हुआ, right? जुलाई अगस्त के करीब होगा ये आपका एक्सरसाइज जो आपने किया हुआ है. Let us check it, let us recollect, correct it, and let us update it. Right? What we will do? We will check the calls which you all have presented, and we will recorrect them for future. हम देखेंगे where we did some mistakes. We will correct our mistakes also. All right? So everyone are with me right now. Let me open the spreadsheet of Prashant Khare ji. Yes, Prashant ji, are you online? Let me check. मैंने प्रशांत जी का नाम तो लिया नहीं अभी. Okay, I think Prashant Khare is not in the meeting. लेकिन मीटिंग में सबसे पहले तो प्रशांत जी को देखा था मैंने. ओके, नो प्रॉब्लम, लेट हिम कम बैक. जुगल इज नॉट देयर. हिरेन भाई, श्रीनिवासा, या मिस्टर श्रीनिवासा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, या श्रीनिवास जी. हेलो सर. या हेलो, एंड फाइन एवरीथिंग. यस सर. ओके, so Srinivas ji, just I want to confirm one thing with you. Many people approach us that Piyush bhai, teach us directly technical analysis, teach us trading. We only want to do trading. We are not interested in long-term wealth, right? Yes sir. Should we teach only trading? Because if I will teach directly only trading and we will not focus on their fundamentals, on wealth, I doubt that you would have created HDFC Bank, Dr. Lalpath, ITC, Ultratech, and TCS in your spreadsheet. यहाँ पे कुछ और शेयर होते. Am I right or wrong? Right sir. So we never teach anyone directly trading. We reject them. We tell them पहले अपना highway clear करो. First be clear on your long-term things, right? Because Yes, some stocks are going to run like plane. And some stocks are going to just run 1 or 2 years, then they are again going to come at the same price. If we will trade in that 80% companies, which we have rejected during our exercise of quality companies, we have rejected several sectors during growing industries, then what will happen? Majority of the call which you will create will be stop loss. Right, sir?
Right, sir. Right. Okay, so let me watch your stock. You have given HDFC Bank as your call. Now, Srinivasi, I think you should have given DCB Bank. No, sir. You should have given Yes Bank. You should have given IndusInd Bank. Why you gave this HDFC Bank? And now when we are discussing thing after 4-5 months, we should check कि हमारा ये decision सही था कि गलत था, right? Right, sir. Okay, so let me open the chart of your HDFC Bank. Okay. Who will say me that what is the benchmark while doing positional trading? हमने एक benchmark तय किया था, अगर सबको याद हो तो. What was that benchmark? With which benchmark we are going to correlate our index or share? Now, right now I am checking HDFC Bank, but with what benchmark we should check this HDFC Bank? किसके साथ इसको हमें पहले कंपेयर करना चाहिए? GDP. सर निफ्टी. GDP. राजीव जी मंथली चार्ट. ये सौरभ भाई ने लिखा निफ्टी. ताली हो जाए इनके लिए. प्रशांत जी आपने भी बोला निफ्टी. वेरी गुड. सी निफ्टी इज द बेंचमार्क. हमें हर बार जब भी हम कोई भी ट्रेडिंग करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, वी शुड चेक इट विद निफ्टी वेदर अवर इंडेक्स और स्टॉक वेयर वी आर ट्रेडिंग इज आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी. Right? So let me check here Nifty before checking your HDFC Bank. Right? This is Nifty. Daily, weekly, monthly. What should I do? Sarvanand ji? Sorry, Srinivas ji. Daily, Monthly, weekly, sir. monthly. Monthly. Okay. So this is monthly. Let me all download my MEMA chart. Right now it. Okay. Now it's with MEMA. Okay, here is monthly. Now, can you remember? You all have created a call in Nifty. And you have said that if Nifty will move about this 9599, iske upe nikla. Who will tell me what was the stop loss which we have decided that time and what was the target? Yes, please. Anybody? You can write down in the Lowest chat. low of the band. Band of the trend. Sir, lowest low of the band. Okay. So what was the band of the stop trend? loss? Yeah. But Sir, what was the band of the trend of Nifty? 58. मतलब buying level. Sir, sir, higher close, sir, and higher high. Higher high. Means 95.99 was your buying level. Right? Yes. You are not buying Nifty for wealth. कि मैं 50 में माँ पे लूं, मैं 100 में माँ पे लूं. Why you were buying? For trading. Right? So your buying level was 9599 and your stop loss was कितना था? 7511. So what was your risk? लिखो इधर. Let me write down here. Nifty, you were going to buy 9599. Your stop loss was 7510. This was your risk. 2089 point. Right? We should multiply it by how much? कितने का lot है? 75. 75. So if you were going to play this game, right? आपका risk कितना था इधर? 1.5 लाख का? Right or wrong? Right? एक बड़ी गेम है. 1.5 लाख का हम लोग रिस्क ले रहे थे उस समय कि let us have a goal on buying Nifty. हमारा टारगेट उस समय का क्या था? Anybody? कितना टारगेट लेके चल रहे थे? Hello. Highest close. Highest close. क्या है? 12,100. ना? 12,100. 12,160 मतलब 12,100. So
your target is 12,100. So what was your reward? 2,501. 1,90,000 was your reward. अब रिस्क रिवॉर्ड इतना ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है क्या? कम से कम 3 लाख तो मिलना चाहिए ना, 1.5 लाख का रिस्क ले रहे हो आप लोग, राइट? लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर निफ्टी का स्टॉप लॉस आया होता तो कौन बचता? कौन से शेयर चलते? गॉट इट? व्हाई निफ्टी इज बेंचमार्क? निफ्टी इज बेंचमार्क क्योंकि निफ्टी में इंडिया का टॉप 50 कंपनी आ गया. सो दिस इज आउट परफॉर्मिंग ओवरऑल अदर इंडाइसेस. निफ्टी को ध्यान में रख के हम निफ्टी को दूसरे सेक्टर से कंपेयर कर रहे थे उस समय. दैट टाइम यू सेड निफ्टी अगर बैंड ऑफ द ट्रेंड देगी, वी आर गोइंग टू बाय, एंड दिस वाज आवर टारगेट. दिस वाज आवर टारगेट, लास्ट टारगेट, कि दिस वाज आवर टारगेट 1. यस, ये हमारा आखिरी टारगेट था कि पहला टारगेट था? फर्स्ट टारगेट. चलो नेक्स्ट टारगेट क्या था? Who will tell me? जो कंप्यूटर या लैपटॉप पे है, प्लीज कैलकुलेट. रिट्रेसमेंट लगा के सर. हाँ, रिट्रेसमेंट नहीं विजय भाई, एक्सटेंशन है ना? सॉरी, एक्सटेंशन. हाँ, रिट्रेसमेंट तो हम नीचे कैच करने के लिए लगाते हैं, बराबर? तो बताओ एक्सटेंशन कहाँ पे आता है? कहाँ का टारगेट हमने सेट किया है? राइट, जिस दिन से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया उस दिन से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टारगेट. कौन सा टारगेट है वो? मुनीर को तो बहुत याद था, मेरे को बोल रहा था पीयूष भाई आपने टारगेट क्यों बदल दिया? हाँ मुनीर? यस. हाँ सर, वो कुछ पहले कुछ 15,000 अराउंड था, फिर 14,400 या वैसे कुछ वो नहीं 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 मुनीर, कुछ अपना आगे एक ही था, टारगेट था 200 पहले. पॉइंट का इधर उधर है कुछ. या तो क्या था टारगेट? कितना लिखूं? किसी ने गिन लिया हो तो? एक्सटेंशन कितना है? गिनूं मैं यहाँ पे? दिस इज माय एक्सटेंशन. ये तो हमें देखना है, पर इसको कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम लगेगा. हमारे लिए सबसे पहले हम ये साल क्या देखने वाले हैं? टारगेट 1 क्या है? लाइन ड्रॉ कर दूं इधर? कितना था मुनीर? 15,400 है ना? तो हम सब लोग किसकी वेट कर रहे थे? जब से बाजार ने ये यूटर्न दिया, हमारा पहला टारगेट ये ब्रेकआउट दिया, अब हमारा दूसरा टारगेट है 15,400. लेकिन मैं रोज 15,200 बोल रहा हूं. वो क्यों बोल रहा हूं? कौन बताएंगे? है ना, हम लोग तो रोज 15,200 कह रहे हैं. यस, हाउ? क्यों? एक्सटेंशन में 200 रुपये का कम हमने टारगेट रखा हुआ है. तो हाईएस्ट क्लोज रहेगा. क्लोज तो हाईएस्ट होगा ही नहीं ना. एक्सटेंशन में कोई क्लोज नहीं होता है. ये तो हम एक्सटेंड होते जा रहे हैं. अब तो हमने एक 3 साल से जो रेंज में फंसे हुए थे वो दलदल से निकले. तो कभी भी कोई आदमी फंस के जब निकलता है तो क्या करता है? सीधा दौड़ता है. योर निफ्टी इज रनिंग लाइक एनीथिंग. व्हाई? Because Nifty was trapped from last 3 years. Now Nifty is out. तो निफ्टी को एक ही जगह दिखाई दे रही है, और वो कौन सी है? 15,400. राइट? Why we are saying 15,200? Due to this first breakout candle, bullish engulfing. इसका टारगेट किसने लिखा चैट बॉक्स में? लेट मी सी. R3 डैनी. डैनी तो ट्रेडर है यार, एकदम एक्टिव ट्रेडर डैनी. तो डैनी R3 नहीं गिना क्या इसका? बुलिश एंगल्फिंग का गिना ना? तो 15,200 टारगेट होता है. राइट? ये R3 का बहुत इंपॉर्टेंट है. और R3 जनरली 6-7 महीने में आता है. कितना टाइम लगता है? 6 से 12 महीने का टाइम समझ लो, इतने में R3 आता है. बराबर है? तो अभी हम पहला क्या टारगेट सोच के बैठे कि निफ्टी जो यहां से निकला
So Nifty is approaching toward R3, that is 15,200. 15,400 आता है, we will be very happy क्योंकि हम 15,400 की भी वेट कर रहे हैं. लेकिन नीचे की तरफ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है? सबसे पहला नियम, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट क्या हुआ? कौन वापस मेरे को, who will recollect this thing? Which is the strongest support now? जो रेजिस्टेंस था सर वो सपोर्ट है, जहां से विजय भाई breakout भी है। बढ़िया, एकदम वेरी गुड. सो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट तो विजय भाई ये है, पुराना रेजिस्टेंस, बराबर ना, 12,400 500 के आसपास, राइट? यस सर। लेकिन ब्रेकआउट के बाद जब ट्रेडर रिमोर्स आता है, मुझे कौन ये याद कराएगा कि व्हाट वाज ट्रेडर रिमोर्स? यस, हु विल रिकलेक्ट? निफ्टी वापस रिटर्न आता है, फिर वापस ऊपर जा रहा है उसको। या एब्सोल्युटली. तो जब भी ट्रेडर रिमोर्स आएगा, तो ट्रेडर रिमोर्स जब आता है, एट दैट टाइम वी शुड रिमेंबर, जरूरी नहीं हम ये सपोर्ट तक आएंगे, राइट? हम उससे पहले ही कैच हो जाएंगे और हमारी रैली 15,200 की ओर चलेगी. मान लीजिए 1-2 महीने में करेक्शन आया, 15,200 से पहले करेक्शन आया, तो हम सपोर्ट किधर लेंगे? जहां छूने नहीं आएंगे, उससे पहले ही हमें कैच होने के चांसेस होते हैं. वाई? क्योंकि ट्रेडर रूम में रिमोर्स में कौन खरीदने को आता है माल? बताओ कौन लोग आते हैं लेने को? जो छूट गए, मिस हो गया था। बायर्स। या जो लोगों, आपने देखा ना, अभी बहुत से लोग पूछते हैं पीयूष भाई किधर लूं किधर लूं. लोगों को ये 3 साल से बाजार गिरा हुआ था, डायबिटीज, पूरा बेचारा कैंसर पेशेंट की तरह एकदम ठंडा पड़ा था, कभी हिलता नहीं था. लेकिन अब सारी बीमारी निकल गई, अब निफ्टी खड़ा होके दौड़ रहा है, तब हम सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं. जो लोगों ने ये समय उसको संभाल लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, क्या वो फायदा अब लोगों को होगा जिनको ये फायदा मिला है नीचे वाले लेवलों का? नहीं सर, नहीं होगा. तो सीधा है, जो लोग मंदी में लाभ नहीं लेंगे, they are going to buy at higher price. Who will tell me what will be biggest loss to those people who are going to run after price? देखो उनको भी प्रॉफिट होगा. Why they are going to get gain? Because market is in rally. पर उनके सर पे एक बहुत बड़ा जोखिम है. वो क्या है? सर स्टॉप लॉस Correction. हो जाएगा उनका। देखो प्रशांत जी ने भी जो बोला, डेट इज ऑल्सो राइट. स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा. दूसरा, करेक्शन के चांसेस होते कभी भी. इन ट्रेडर रिमोर्स वी मे सी ट्रेडर रिमोर्स. सो व्हाट इज ट्रेडर रिमोर्स? निफ्टी 2-3 महीने ऊपर गया, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, धीमे धीमे टूटता है. आप लोगों को चाल याद है? हाँ, वगैरह मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करूंगा थाने. आप लोगों को चाल याद है क्या? मीटिंग में कि- हूँ, बाद में बात करूँ. ओके, आप लोगों को चाल याद है क्या कि व्हेन वी वर फॉलिंग, फॉल में जब करेक्शन आता था ऊपर की तरफ, तो हम धीमे धीमे चलते थे, है ना? क्योंकि ये ट्रेडर रिमोर्स था. जबरदस्त टूटते थे, धीमे धीमे ऊपर चलते थे. लेकिन अब हम तेजी में है. नाउ वी आर इन रैलिंग मार्केट. अब हम चलेंगे फास्ट और टूटेंगे कैसा? टूटेंगे फास्ट। धीरे सर, धीरे धीरे स्लो. धीरे 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 धीरे। उसी को तो रैली कहते हैं, बराबर. देखो ये दिख रहा है आपको, पुराना इतिहास देखो, हम कैसे फास्ट चले ना. यहाँ पे हम 2008 में, देखो 2008 में हम इधर से निकले थे. कैन यू सी दिस थिंग? फिर हमने कंटिन्यू रैली किया. बिलीव मी, ये 2014 की जब रैली आई, हर महीना लोग बोलते थे बाजार इज वेरी एक्सपेंसिव, मार्केट कैप के नजदीक आ गया है, कंपनियां कमाती नहीं है, बाजार शेयर चल रहा है. फिर जब इधर बाजार पहुंचा ना, तब कंपनियां कमाने लगी. तो इन्वेस्टर तो पहले से रेडी होते हैं, उनको पता रहता है क्या होगा, राइट? कंटिन्यू कितने समय चला, कोई गिन के बता सकता है? कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 महीना. तो यहाँ पे सबके पेशेंस निकल जाता है ना? और जो तेजी में नहीं आते थे,
जो लोगों ने कवच पहना था, नहीं तेजी में मैं आऊंगा, वो कवच भी उनका हट जाता है। पर कब हटता है पता है? 10वें 11वें 12वें महीने में। और फिर वो वापस फंसते हैं किसमें? ट्रेडर्स किसमें फंसते हैं? रिमोर्स। ट्रेडर रिमोर्स। जो लेट जागेंगे उनका यही हाल होगा, राइट? तो जो लोग तेजी में शेयर का पीछा करेंगे, they will not have margin of safety. If we will not have margin of safety, our stock would be trading at too far from intrinsic value. Our share would be expensive, and that is the reason there is low margin of safety at higher price. But all those people who have not bought the stocks, who have not accumulated during falls, are going to buy during rallies. Got it? Now, let me return back here. इधर क्या? आप लोगों ने accumulate किया, SIP किया, तो it's very good. Now Nifty is moving toward your expected target. Nifty बीच में टर्न मार सकता है, ट्रेडर रिमोर्स आ सकता है, तो धीमे धीमे टूटेंगे। फिर क्या होगा? टारगेट बाकी होगा तो वापस टारगेट की ओर चलेंगे। बराबर की नहीं? स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट क्या बताया आप लोगों ने मुझे? 12,500। लेकिन मैं कुछ और लेवल लिखता हूं डेली, है ना? कौन सा लेवल लिखते हैं हम लोग? सर 11,900। हाँ, वो क्यों 11,900? सर टारगेट R3 लिया है जिसका, तो उसका जो S1 होगा वही लेंगे ना फिर? करेक्ट, करेक्ट मुनीर। S1 इज अवर बाइंग लेवल, बराबर ना? तो S1 पे आता है, दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। पर मैंने देखा है जो लीडिंग कंपनियां होती है, जो लीडिंग इंडाइसेस होते हैं, जनरली दे डू नॉट कम टू S1 बिकॉज दे आर लीडर। जो वीक होंगे वो S1 पे आएंगे, और जो बिल्कुल वीक होंगे वो किधर तक आएंगे? Who will tell me? तक S3, एकदम नीचे तक, राइट? यहां तक S3 इधर ही किधर होगा ना, राइट? अगर निफ्टी S3 आता है, लेट मी रिपीट, कभी भी ये मत बोलो ये नहीं हो सकता है, बाजार है, सब कुछ हो सकता है। ये बुलिश एंगल्फिंग की कैंडल बनी, मतलब बाजार ने एक रेंज बना ली है, S3 to R3, दिस इज माय रेंज। स्ट्रॉन्ग रहूंगा तो मैं R3 की तरफ जाऊंगा। कुछ अचानक कुछ खराबी आई तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है S1 to S3, राइट? अगर निफ्टी S1 आती है तो वीकेस्ट इंडस्ट्री किधर जाएगी? S3 की ओर। वो जो घटिया शेयर है वो किधर जाएंगे? कौन बताएंगे? हाँ, वो 80% वाले शेयर किधर जाएंगे? अगर निफ्टी S3 आता है तो वो किधर जाएंगे? हम ये तो जो देखते लो, ही नहीं सर। ये 52 वीक लो दिख रहा है ना विजय भाई, वो ये 52 वीक लो को भी तोड़ेंगे, राइट? So that is the reason only focus on index and based companies, right? तो ये हमने पूरी चाल हमारी बना दी। अब इसको आपने निफ्टी को देखा, निफ्टी ने कब ब्रेकआउट दिया? लेट मी चेक इस मंथ, अप्रैल, मई, जून। We should note it down in our diary that Nifty gave band of the trend in the month of June. All those index and stock which have given band of the trend before Nifty would outperform during whole rally. ये हमने बात उस समय सीखी थी। Am I right or wrong? कि उस समय तो आपको पता ही नहीं था ये रैली आएगी, राइट? हम इधर कहीं थे और हम वेट कर रहे थे। किसका वेट कर रहे थे? यार बैंड ऑफ द ट्रेंड आ जाए, राइट और रॉन्ग? मैं ये सारी चीजें भी डिलीट कर देता हूं। ओके, अगर निफ्टी ने बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे ना जिन्होंने इससे पहले एडवांस में बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया होगा, राइट और रॉन्ग? राइट? कोई मुझे बता सकता है किसने निफ्टी से पहले बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया था? किसी को याद है क्या? फार्मा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट करेक्ट। आईटी, तो फार्मा, आईटी, उन्होंने निफ्टी से पहले
बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया। हम उसकी इफेक्ट अभी देखेंगे क्या है उसकी इफेक्ट, राइट। निफ्टी ने जून महीने में दिया, फिर निफ्टी को बिहेवियर समझो, 1 2 3 ट्रेडर रिमोर्स, 4 5 छठे महीने आपका टारगेट आया, ब्रेकआउट दिया और अब वो टारगेट टू 15,200 की ओर बढ़ रहा है। यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल सी 15,200 इन नेक्स्ट 5 to 6 months, राइट। अब नाउ लेट मी चेक Nifty IT here. This is Nifty IT. This was your range. Nifty IT टूटा था कि नहीं टूटा था, कि नहीं टूटा था? Yes, please. टूटा था सर। कोरोना में टूटा था, टूटा था। और कहां तक आ गया था? 100 मेमा, right? Nifty IT gave breakout when? Here, can you see? In the same month, महीना सेम था, राइट? कौन से महीने में? जून महीने में। पर आपका टारगेट कितने टाइम में आ गया निफ्टी आईटी में? अगले महीने, नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ। ये आपको उछल उछल के क्या कह रहा था निफ्टी आईटी जुलाई महीने में, कि मुझसे मत उलझना, मैं तो तेजी का घोड़ा हूं, मुझे निफ्टी से कंपेयर मत करना, मैं निफ्टी से तेज दौड़ने वाला हूं। ये आपको जुलाई में निफ्टी आईटी ने बताया, और ये क्या बनी थी? बुलिश एंगल्फिंग, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल। ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको? है क्या एकदम लाइफ टाइम हाई? क्यों इतने बड़े वॉल्यूम के साथ जुलाई में बुलिश एंगल्फिंग बना? क्योंकि बड़े बाइंग आते हैं, राइट। सबसे पहला टारगेट क्या था आपका? करूं एक्सटेंशन? ये था। ये क्या है पता है? ये निफ्टी का 15,200 है, याद आ रहा है ना? तो आप निफ्टी में वेट कर रहे हो, 15,200 आ गया क्या? अभी आया नहीं। कितने महीने हो गए ब्रेकआउट दिए? अभी दिया ना ब्रेकआउट तो लास्ट मंथ। निफ्टी आईटी को कितना टाइम लगा था टारगेट पे आने में? 2 महीना, राइट। अब निफ्टी आईटी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट और रॉन्ग? निफ्टी अगर निफ्टी आईटी को अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आज निफ्टी आईटी आया है, कल कौन आएगा? 15,200 पे निफ्टी आएगा ना। सो ये कंप्लीट ट्रैक हो रहा है। हम लोग निफ्टी में अभी ये ऊपर के टारगेट तो सोच नहीं सकते, लेकिन निफ्टी आईटी किधर को चला? आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए निफ्टी आईटी का? राइट और रॉन्ग? 26,000 की ओर निफ्टी आईटी चल रहा है। डन? बराबर है ना? ओवर द पीरियड हम क्या देखने वाले निफ्टी आईटी में? 35,000, राइट। अब निफ्टी का भी आपने टारगेट देखा, निफ्टी आईटी का भी देखा, पहले कौन आएगा अपने टारगेट पे? बताओ। निफ्टी आईटी डेफिनेटली। इसको अब मैं नाउ आई एम गोइंग विथ मिस्टर श्रीनिवास जी, एचडीएफसी बैंक। बिफोर लुकिंग टू एचडीएफसी बैंक आई शुड चेक हिज इंडेक्स। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राइट। सो हियर इज निफ्टी बैंक। ओके, मेरे को चेक करके बताओ। दिस इज निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का टारगेट आ गया सर? नहीं आया सर अभी। ऐसा कैसा चलता है? निफ्टी आईटी तो अपने तीसरे टारगेट की ओर चला, निफ्टी अपने पहले टारगेट की ओर चला, और निफ्टी बैंक अभी क्या कर रहा है? ये अभी भी करेक्शन में है कि नहीं है? एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट। स्टिल निफ्टी बैंक इज इन करेक्शन। व्हाई वी कैन से? बिकॉज अभी वो रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं निकला है, अभी तो आपका पहला टारगेट नहीं आया है। तो अब मेरे को बताओ, निफ्टी या निफ्टी बैंक, हु विल आउट परफॉर्म? निफ्टी विल। निफ्टी। निफ्टी।
निफ्टी बैंक इज अंडर परफॉर्मिंग, ये जानने के लिए मुझे कोई साइंटिस्ट होना पड़ेगा? नहीं। या हमने RSI डाला, स्टोकेस्टिक डाला, वो बॉइलिंगर बैंड डाली, वो वेव एनालिसिस किया? इट्स वेरी सिंपल। एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी के साथ वी आर एबल टू नो दैट निफ्टी बैंक इज अंडर परफॉर्मिंग। निफ्टी बैंक ने तो अभी ब्रेकआउट भी नहीं दिया है। आपको याद हो तो हमने कहा था कि निफ्टी अगर 100% रिट्रेस करता है, निफ्टी बैंक जहां आता है, तो इसका मतलब समझ जाओ निफ्टी 15,200 की ओर जा रही है, राइट? निफ्टी 15,200 आएगी और ये यहाँ पे पहुंचेगा। अब निफ्टी बैंक हैव स्टिल नॉट गिवन ब्रेकआउट। नाउ लेट मी चेक श्रीनिवास जी HDFC बैंक। हाँ, क्या हुआ सर? आपका कॉल सही निकला कि गलत निकला? सर So Srinivas ji said buy HDFC Bank at 840, right? कितना buying? क्यों 840? Band of the trend, right? Now Srinivas ji, your Nifty Bank has still not given the breakout. It means आप वो शेयर में हो जिसका इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मुश्किल बात होती है, थोड़ी तकलीफ होती है आपके शेयर को चलने में, बिकॉज हिज फादर इज नॉट मूविंग। Who is father of HDFC Bank? Index. Nifty Bank. Right? So despite his father's weakness, HDFC Bank ने आपका टारगेट ही नहीं, ये किधर आ गया? क्या दे दिया इसने? ब्रेकआउट। हाईवे क्लियर। तो HDFC बैंक ने बोला कि मेरा टारगेट, आप लोग उस समय कितना कह रहे थे? लेट मी चेक, 3249। श्रीनिवास जी आपने तो बिल्कुल लंबा टारगेट लिख दिया एकदम, हाँ सीधा एक्सटेंशन। पहले क्या टारगेट लिखना चाहिए श्रीनिवास जी? व्हाट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट? Highest. closing. Yeah, 1270. This was supposed to be your first target. Now if I am holding, अगर मैंने यहाँ पे माल लिया था HDFC बैंक, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, see even in my portfolio I have added HDFC Bank during this fall, तो मैं क्या करूंगा 1270 के करीब 10% प्रॉफिट बुक करेंगे। 10% थोड़ा ज्यादा है, 5% बराबर है। हाँ मेरे पास ICICI बैंक है तो मैं 10% करूंगा क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। इफ आई एम हैविंग DCB बैंक तो मेरे को 50% बुक करना पड़ेगा। सो the amount of profit booking depend on what? The quality of your stock. Correct, sir? If you are holding highest quality, then 5% is enough. 5% booking कर लिया, थोड़ा पैसा आ गया, you enjoyed with your money. पर अब इसने ब्रेकआउट दिया है। मान लीजिए श्रीनिवास जी, this stock would have not given breakout, तो क्या होता? इधर से नीचे आता, राइट? फिर क्या होता? आप इसको क्या कैसे ट्रैक करते? बताइए कोई भी। हाँ, ट्रेडर्स रिमोर्स आ जाता सर। ट्रेडर रिमोर्स आ जाता तो ये थोड़ा आपके और 5-6 महीने बिगाड़ता इन शॉर्ट, बराबर की नहीं? फिर वापस से जब ब्रेकआउट आता तब ये चलता, राइट? अब ये चलने लगा है तो अब इसका टारगेट क्या है जो श्रीनिवास जी ने लिखा है? 3259 इज एब्सोल्युटली राइट। तो आपने लिया 3259 पे। श्रीनिवास जी व्हाट वी विल डू? वी आर गोइंग टू बुक सम मोर प्रॉफिट। अगर आपने पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ था तो आप ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बिकॉज you only want some trading money from this stock, right? But see, why you earned money, because of your selection, right? Now let me write down here ICICI Bank, right? बताइए आपने ICICI बैंक सिलेक्ट क्यों नहीं किया था? मुझे बताइए श्रीनिवास जी, why you have not selected ICICI Bank when you have selected HDFC Bank? Because banking sector HDFC Bank is the #1 performer, and so we took the top company. But on looking to only chart, can you tell me
सिर्फ चार्ट देखते तो Sir, ICICI Bank is volatility is more and it is not that much performing. see Srinivas, we can directly see from here. Bend Sir, of the trend was in November. हाँ कहिए विजय भाई. Yes. सर उसने HDFC बैंक ने सबसे पहले बेंड ऑफ द ट्रेंड दिया था. Correct. Don't forget this thing. लीडर पे सबका ध्यान है ना. जो बेस्ट होगा वो सबसे पहले चलते हैं. सो इट वाज सिंपल. आईसीआईसी बैंक ने बैंड ऑफ द ट्रेंड नवंबर में दिया, एचडीएफसी बैंक ने जून में दिया, और कुछ बैंक कब देगी पता है? फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन. क्या वो अच्छी है? क्या उनको लेंगे? नो सर. लेकिन टिप्स उनकी भी चलेगी, क्योंकि टिप्स वालों को एक्साइटमेंट डालना है. देखो लोगों को जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनको ऐसा होता है कि मुझे आज कोई आज का शेयर नहीं मिला ना तो मैं बीमार हो जाऊंगा. मेरे को आज का कुछ, आज क्या चलेगा, अब क्या हॉट है, राइट? और वो गलती करते हैं वहां पे. अगर रोज नए नए शेयर अच्छे होते हैं तो इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं. शेयर नहीं बदलेंगे, शेयर तो वही रहेंगे, राइट? हमें हमारे शेयर पे ध्यान देना है. आईसीआईसी बैंक स्टिल हैव नॉट क्लियर्ड इट्स टारगेट. अब एक बार चलो ये टारगेट क्लियर भी करेगा. कब करेगा? 1-2 महीने में आ जाएगा ना 100% रिट्रेसमेंट पे इधर. फिर ये ब्रेकआउट कब देगा? 2-3 महीने बाद ब्रेकआउट देगा. मतलब पूरी रैली में ये एचडीएफसी को अंडर परफॉर्म कर रहा है. और इसको कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है? हु इज अंडर परफॉर्मिंग? ये भाई कब टारगेट पे आएंगे इधर? कैन एनीबॉडी टेल मी? हाँ, वैलेंटाइन डे में आएंगे क्या? फरवरी में? अगले सर, इससे अगला जो आएगा वैलेंटाइन डे 2022. एब्सोल्युटली 2000. पर तब तक तो एक दूसरा एक फॉल आ जाएगा, ट्रेडर रिमोर्स, है ना. 15,200 पे बुकिंग तो आएगा ना, प्रॉफिट बुकिंग. इसीलिए ये सब शेयर जिंदगी में कभी नहीं चलते. पर मैं पता नहीं टिप में यही सब हॉट होते हैं. भगवान जाने क्यों होते हैं, जाने दो इनको. श्रीनिवास जी गिवन एचडीएफसी बैंक, ही इज एब्सोल्युटली राइट. ये डॉक्टर लालपत आपने दिया था. लेट मी चेक. क्या हुआ सर? You have written, I will buy at 1305. My target is 3668. अभी किधर चल रहा है ये? ओके. आपने बैंड ऑफ द ट्रेंड देखा, रैली की ओर है. आपका टारगेट क्या है? 3668. किधर आ गया ये? अभी 2400 तो ये आ चुका है, राइट? क्या करेंगे? आउट परफॉर्मेंस. प्लीज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट द बेसिक फंक्शन, बेसिक थिंग इन एनी स्टॉक और इन एनी इंडेक्स व्हाइल वी आर ट्रेडिंग. देखो हम क्या ट्रेडिंग करते हैं वो जरूरी नहीं है. आई डोंट वांट द नेम कि मैंने बीटीएसटी किया, मैंने फ्यूचर किया. आई एम ट्रेडिंग ऑप्शंस. नेम में कुछ नहीं रखा है, पैसे में बहुत कुछ है. एट द एंड ऑफ द ईयर आई शुड बी मेकिंग मनी. इफ आई एम नॉट मेकिंग मनी, ये सब नाम कोई काम के नहीं है, राइट? कुछ नाम टर्नओवर के लिए बनाए गए हैं. Some products are specially designed for turnover. हम टर्नओवर देने के लिए नहीं है, हम लोग पैसा कमाने के लिए इधर, राइट? सो डोंट फोकस ऑन टर्नओवर, डोंट फोकस ऑन हाइपर एक्टिविटी, फोकस ऑन प्रॉफिट मेकिंग. राइट और रॉन्ग? बराबर. सो जस्ट ट्रैक इट. श्रीनिवास जी, what I will like, you just go through your all these shares and then रीचेक इट कि आपने क्या टारगेट लिया था टीसीएस का, अल्ट्राटेक का. अब आप क्या इसमें अपडेट करोगे? वी ऑल शुड रीडू दिस एक्सरसाइज, राइट?
राजीव जी, मिस्टर राजीव शर्मा, मेरे ख्याल Yes, sir, से good evening. यस Yeah, जी, Good sir, good evening. evening. यस, हाउ आर यू? Very well, sir. ओके, कैसा सब बढ़िया चल रहा है? All, एक्यूमुलेशन? sir, all good, always good. ओके ओके, सो आई होप कुछ शेयर डबल की ओर तो निकल ही गए होंगे, बराबर ना? सर बिल्कुल निकल गए, और पीआई इंडस्ट्रीज उसमें से एक है, मतलब क्या डबल बात नहीं, है। बट 50% टाइप्स है। ओके ओके, चलो शुरुआत है ये तो। अभी हाँ जी, सर। 1500 आते आते देखना और क्या क्या कमाल होता है, बराबर बिल्कुल ना? सर, बिल्कुल। शांति से इसको खाली एंजॉय करो, क्योंकि आपने तब लिया राजीव भाई जब आपको लेने की इच्छा नहीं होती थी। बुरे समय पे आप लोगों ने एक्यूमुलेट किया है, तो अच्छे समय में शांति रखनी है, बराबर ना? तो बिल्कुल टाइम सर। कैलकुलेशन फॉर टारगेट अचीवमेंट, वो एक बार वो बता दीजिए ना वापस क्या? से। हाँ, रिपीट करो मोहन भाई, क्या बोले आप? टाइम कैलकुलेशन फॉर टारगेट अचीवमेंट के लिए जो टाइम लगने वाला है वो। हाँ चलो, अभी जो एग्जांपल पे आता हूँ उसमें हम हाँ। लोग टाइम फ्रेम पे बात कर लेंगे, बराबर है? या। या ओके। तो राजीव भी, आपने एचडीएफसी लाइफ लिखा था, आपने धनुका लिखा था, आपने पीआई लिखा था। अब ये दोनों तो एक ही सेक्टर के थे, तो लेना तो हमको कोई एक पे ही ध्यान देना था, बिल्कुल। राइट? आपको याद होगा हमने उस समय भी चर्चा किया था कि यूपीएल में हाई वॉलेटिलिटी रहेगा, सर। राइट? क्योंकि वो हर बार फॉल में ज्यादा टूटता है और रैली में वो कम दौड़ता है, लीडर होने के बावजूद। When we are reading fundamental, we know that there is high depth, there is low consistency, that's why. But if we are Right. only looking to chart, can you now tell me that you were right or wrong in your decision? आपने यूपीएल लिया होता तो क्या होता? सर बिल्कुल ठीक थे। अभी रैली में भी मतलब बिना मतलब के एक वो न्यूज आई और 100 पॉइंट करीब टूट गया, 450 से वापस 390 चला गया। बराबर है, पर वो न्यूज की वजह से नहीं टूटे राजीव भाई। I mean, तो I know इन्वेस्टर को पता है ये विशल ब्लोइंग तो चलता रहेगा, राइट, है ना? ये तो कब से टूट रहा है, चला ही नहीं है, दिख रहा है ना आपको? राइट। मैं तो कहूंगा ये इधर से करेक्शन मोड पे है। ये फॉल्स ब्रेकआउट आया था, और करेक्शन मोड तो लंबे समय से चल रहा है, 2016 से 4 साल हुए करेक्शन में, राइट? अब आपने यूपीएल सिलेक्ट नहीं किया, आपने सिलेक्ट किया पीआई इंडस्ट्री। क्या डिफरेंस हुआ सर दोनों में? ब्रेकआउट आ गया सर। अब मंथ आई मीन नेक्स्ट मंथ ही आ गया एक्चुअली। अप्रैल में ही ब्रेक, ओके नॉट अप्रैल, जून में ब्रेकआउट आया। या जुलाई में। ये टूटा ही नहीं था इनफैक्ट, है ना? हाँ। एकदम लिमिटेड 50 मेमा से वापस रैली, बराबर ना? तो ये तो टारगेट की ओर दौड़ता जा रहा है। मेरे को अभी इसमें एसआईपी करना चाहिए राजीव भाई? सर कैन नॉट से एक्चुअली। नहीं करना चाहिए, एकदम क्लियर रहो। ओके। ऐसा क्यों कहा कैन नॉट से? सी वी हैव अ रूल, व्हेन योर स्टॉक इज इन रैली मोड, बाजू में हट जाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डू एसआईपी। When we are going to do SIP, whenever share comes in correction. वो ऊपर 2 महीने सर थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, रेंज बाउंड दिखा, इसलिए आई कुडंट से। नहीं देखो, रेंज बाउंड अभी भी नहीं बोलेंगे। रेंज बाउंड की पहली निशानी who will tell? चलिए सबको मैं एक क्वेश्चन थ्रो करता हूं। When I will say PI has entered now in correction mode. When it comes to 50 memo, previous month lower than the previous month. हाँ, रिपीट करो तो क्या बोले? When this month's close is lower than the previous month's close. ताली हो जाए आपके लिए। Wonderful. Okay. See, these are simple and normal rule. See, this was correction, है ना? स्टॉक नहीं चल रहा था, स्टॉक was making lower low lower high, lower low lower high. इधर स्टॉक ने किया था lower low lower high. So we got some limited 4-5 months of correction. पर अभी तक पीआई ने lower low lower high किया है क्या? In fact, Rajiv bhai, this month also you saw higher high. We can say that, right? This month there is an inverted hammer type of candle, है ना इधर? right. So we can say that there might be correction. अभी भी might भी बोलेंगे,
ये कंफर्म कब होगा राजीव भाई कि यस पीआई हैज एंटर्ड इनटू करेक्शन? जब ये प्रीवियस मंथ का लो तोड़ेगा, या तो जनवरी में आपके डायरी में ये लिखा होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू ट्रैक दिस 2168 लो। अगर ये 2168 के नीचे आता है तो मैं मानूंगा आने वाले कुछ महीने, 5-6 महीने हो सकते हैं, 13-14 महीने हो सकते हैं, 1.5-2 साल हो सकते हैं, शेयर एक करेक्शन मोड में रहेगा। So again it is going to give me opportunity, but if this stock will not break its previous low, तो ये तेजी चलती जाएगी। बराबर है राजीव भाई? बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। Sorry to interrupt, sir. Yes, Sir, please. Sir, Parimal here, sir. या परिमल भाई बोलो। Yes. सर अगर वो लो तोड़ेगा आपकी आवाज वो कट कट के आई, सुनाई नहीं दिया प्रॉपरली। तो क्लोजिंग नहीं, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं पता चला आपने क्या कहा परिमल भाई, कुछ नेट डिस्कनेक्टिविटी लग रही है। किसी को सुनाई दी हो तो वो मुझे बता दे, क्या बताया परिमल भाई ने? Audio was not clear, sir. Yeah, audio was not clear. I was also not able to hear. अभी आ रही है सर आवाज? हाँ कहिए। आप दिख रहे हैं लेकिन आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? आ रही है आवाज। बताइए भाई परिमल भाई, आवाज सुनाई दे रही है आपकी? ओके, चलिए मैं थोड़ा तब तक ले लेता हूं कि डॉक्टर रवि किरण ने अभी हमें ये बताया, मैंने अभी आपका मैसेज पढ़ा रवि भाई, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इन करेक्शन मोड। बताइए मेरे को, ही इज राइट और रॉन्ग? राइट। तो एसआईपी का समय चालू हो गया इधर? Yes, sir. अभी कोई नहीं लेंगे इसको क्योंकि ये नीचे आ रहा है। लोगों को वापस कब याद आएगा पता है? ऐसी तेजी करेगा तब। तो लोग उल्टा करते हैं। हमें कब इकट्ठा करना है? करेक्शन मोड में। तो ये करेक्शन मोड में इसका एंट्री हो चुका है एंड वी कैन एक्सपेक्ट 5-6 मंथ, इवन 1 ईयर, इवन 2 ईयर, हो सकता है 1-2 साल। करेक्शन का पीरियड कितना होता है? 6 महीने से लेके 1.5 साल से लेके 2 साल भी शेयर करेक्शन मोड में रहते हैं, बराबर ना? तो 6 महीना तो एक नॉर्मल चीज है, राइट? जब हम लोग सीख रहे थे पोजिशनल ट्रेडिंग, एट दैट टाइम डिमांड वाज इन करेक्शन मोड। याद आया आप लोगों को? हाँ देखो था कि नहीं? अभी डिमांड करेक्शन मोड में है क्या? कौन बताएगा? नहीं सर, ब्रेकआउट हो गया इसका। ब्रेकआउट हो गया तो एसआईपी बंद। डिमांड का पैसा जो एसआईपी कर रहे थे, अभी हम रिलायंस में एसआईपी करेंगे, बराबर ना? रिलायंस में क्या वेट करना चाहिए बैंड ऑफ द ट्रेंड के लिए? वापस से करेक्शन मोड में जा रहा है तो एसआईपी वालों को क्या बैंड ऑफ द ट्रेंड देखने का? अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आपको अभी रिलायंस लेना है और ऊपर बेचना है, तो ही बैंड ऑफ द ट्रेंड का वेट करेंगे ना। ट्रेडरों के लिए दोनों को मिक्स नहीं करना है, बराबर? वेल्थ के लिए हम एसआईपी कर रहे हैं तो हमें सस्ता लेना पड़ेगा। आज कमाने के लिए ट्रेडिंग करना है तो बैंड ऑफ द ट्रेंड देखेंगे, बराबर है? हाँ कहिए विजय भाई, कहिए। सर रिलायंस के केस में जस्ट एसआईपी हम सेक्टर भी देखते हैं ना सर, ग्रोथ में है कि नहीं, तो ऐसे सेक्टर का चाहे लीडर शेयर है उसको करना भी। हाँ तो कौन सा सेक्टर है रिलायंस? सर ये आई थिंक ऑयल एंड गैस। अभी ऑयल एंड गैस में मत देना उसको, क्योंकि ऑयल एंड गैस ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन धीमे धीमे आपका रिलायंस डाइवर्सिफाइड हो रहा है। आप उसको अगले साल रिलायंस का सेक्टर चेंज होकर डाइवर्सिफाइड में आता हुआ देखोगे, राइट? ठीक है। लेकिन सर उसका 75% रेवेन्यू तो ऑयल एंड गैस से आता है सर। हाँ तो इसलिए कह रहा हूं ना कि अगले साल तक अभी उनका ऑयल एंड गैस बढ़ नहीं रहा है, वहां पे उनका ग्रोथ स्टेगनेंट हो गया है।
पर डिपार्टमेंट स्टोर, डिजिटल, वो सब का ग्रोथ तो जबरदस्त है, 40% का ग्रोथ है। यानी समझ जाओ कुछ समय में क्या हो जाएगा, ऑयल एंड गैस और अदर बिजनेस, डिपार्टमेंट स्टोर और डिजिटल जैसे, वो जबरदस्त बढ़ जाएंगे, बराबर ना। तो रिलायंस अगर ऑयल एंड गैस का ही धंधा होता तो ग्रोथ ही नहीं होता, ये शेयर ही चल रहा है डिपार्टमेंट स्टोर और डिजिटल की वजह से, बराबर ना। ओके या हाँ परिमल भाई, आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। आप अगर लिख पाओ तो लिख लो ना चैट बॉक्स में, मैं चैट बॉक्स पढ़ लेता हूँ, है ना। आवाज आपकी बहुत कट कट के आ जा रही है, क्लियरिटी नहीं है। ओके, मेरा राजीव भाई ने HDFC लाइफ उस समय लिखा था कि मैं HDFC लाइफ को लूंगा 519 पे, 645 का मेरा टारगेट। 519 किधर था, इधर, राइट। और इन्होंने कहा था कि मेरा टारगेट है 615। क्या बोलते हो राजेश शर्मा जी का टारगेट क्लियर, राजीव शर्मा जी का ऑल क्लियर, है ना। अब HDFC लाइफ किधर बढ़ रहा है, तो नाउ HDFC लाइफ इज एंटरिंग इनटू रैली मोड। तो यही आशा सारे शेयर से नहीं रखेंगे वो सेक्टर के, बराबर है। सो दिस इज द वे वी कैन चेक in positional trading, right? Yes, let me see what Parimal Bhai is writing. If low of the monthly candle is broken on intraday, or we have to wait for end of the day. Parimal Bhai, अगर लो टूटता है, लो टूटा मतलब करेक्शन पक्का, पर लो के नीचे क्लोज नहीं रहा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि करेक्शन में नहीं है, ट्रेंड है, बाइंग आ रहा है नीचे से, या तेजी उसकी ब्रेक लग गई है, पर मंदी में भी नहीं आ रहा है। मतलब तेजी का घोड़ा है, मंदी में आ रहा है पर मंदी में आने नहीं दे रहे। तो ऐसे शेयर में सेलिंग करके एक्टिव नहीं रहने का, क्योंकि सेलर के हाथ में वो शेयर ही नहीं, राइट। सो लो के नीचे क्लोज हो तो आप मानो कि अब 6 महीने का करेक्शन मिनिमम पक्का, मिनिमम 6 मंथ, 12 मंथ, 2 ईयर, राइट। पर लो के नीचे क्लोज नहीं रहता है तो फिर घोड़ा दौड़ने वाला है, बराबर है। ओके सर, HDFC लाइफ और SBI लाइफ, अगर SBI लाइफ है पोर्टफोलियो में तो HDFC का रखना चाहिए इसको, या एक SBI लाइफ है तो SBI लाइफ रखो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर नहीं, राइट। मेरे को बताओ दो में से ज्यादा कौन परफॉर्म कर रहा है? HDFC कर रहा है फिलहाल तो। देखो HDFC लाइफ इधर नहीं है, ये जो लेवल दिख रहा है ना, इधर नहीं है, इसके ऊपर है। जबकि SBI लाइफ किधर है, अभी तो टारगेट में नहीं आया है, बराबर ना। और तीसरा शेयर कौन सा है इसमें? ये अच्छा है कि HDFC लाइफ अच्छा है? कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है? या सिंपल, बराबर ना। ओके, ये सब आप ही के बताए गए शेयर जो है इनको थोड़ा अपडेट कर लेना, राइट। देखो स्टीफन गोजर जी ने जबरदस्त काम किया था, और मैंने एक वीडियो में इनके ये सब कॉल पे बातचीत भी की थी कि स्टीफन जी आपका काम एकदम काबिले तारीफ है, बहुत बढ़िया, राइट। कोई मुझे बताएगा कि स्टीफन जी ने जो जो शेयर दिए इसमें से कौन सा शेयर ऐसा है जो नहीं चला होगा? एनीबॉडी? एप्पल नहीं चला है ना, क्या कहते हो सर? प्रेस्टीज, टीटी के प्रेस्टीज। ओके चलो देखने दो। देखो एप्पल ने धमाका कर दिया, बायोकॉन तो जबरदस्त चल रहा है, बजाज ऑटो ब्रेकआउट आज दिया लगता है मेरे को, है ना। पर ये टारगेट आ गया, आपने यही टारगेट सोचा था ना, 100% रिट्रेसमेंट। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, हेवल्स ने ब्रेकआउट दे दिया, राइट। बजाज फाइनेंस ने दे दिया, हेवल्स ने मेरे को लगता है यही महीना दिया है, दे दिया सर इसी मंथ।
लो वॉल्यूम वॉल्यूम दिख रहा है आपको? क्या विधाई वॉल्यूम? बुलिश एंगल्फिंग एक नई रेंज में। तो नई रेंज में मतलब समझ जाए, अब जो लोग ये सोचेंगे शांति नहीं मिलेगी, राइट? अब ये घोड़ा बन चुका है। एलटीआई का क्या हुआ? हाँ एलटीआई ने ब्रेकआउट दे दिया सर, दे दिया पक्का? यस। कैसा दिया स्टीफन जी? विधाई वॉल्यूम एलटीआई दे दिया ने सर। तो पागल कर दिया सबको। विधाई वॉल्यूम कैसा? रॉकेट रॉकेट। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था? टारगेट कितने टारगेट लगाए थे देखने दो। हाँ? कितनी बार लिख रहे हैं हम लोग कि भाई टारगेट क्या है? 4731। जल्दबाजी मत करो। फिर भी मेरे को मेरे दोस्त मिलते हैं, बोलते पीयूष यार मैंने तो सब बेच दिया एलटीआई। मैं बोला यार सब क्यों बेच दिए? यार रोज चल रहा है, रोज चल रहा है। ऐसा नहीं करने का, बराबर कि नहीं? एक बार जो प्लानिंग किया, प्लानिंग पे चलने का। आपने प्लानिंग किया हुआ है कि शेयर चलने वाला है, चलने ही वाला है ना, राइट? बढ़िया परफॉर्मेंस आईटी इंडेक्स में एलटीआई, सेम आपका टीसीएस, है ना? हाई परफॉर्मेंस एकदम। निफ्टी से भी आगे है ये सब लोग, तो जबरदस्त। इनके तो भूल जाओ, अभी टारगेट मार्केट लिखने के ही नहीं। एलटीटीएस का क्या हुआ स्टीफन जी? ये नहीं चल रहा था। इसने भी दे दिया सर शायद। नहीं हाँ? किसको लग रहा है दिया होगा कि नहीं? आज ही मैंने अपडेट किया एलटीटीएस का रिजल्ट। हाँ? आप देखोगे तो मुंह में दो दो लड्डू फूलेंगे। विद हाई वॉल्यूम सर, इससे मत हो जाए। हाँ? कैसा चार्ट है? बड़ा वो एंगल फिल्म का एकदम धमाकेदार। मतलब समझ जाओ, सबसे पहले तो हमको ये तो देख ही लेने का कि तुम्हारा इरादा क्या है। अगर ये अपने सेक्टर की बेस्ट कंपनी ना होती और इसने ब्रेकआउट दिया होता तो नहीं देखने का। क्यों नहीं? क्योंकि वो फेक वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, या फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं, फंस सकते हैं। पर ये तो लीडर है अपने सेक्टर का, डेट फ्री कंपनी है, उसमें कोई खराब चीजें ही नहीं है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? हमारा टारगेट इसका 4600। तो अभी हम जब 3-4 महीने बाद वापस बात करेंगे तब बोलना नहीं पीयूष भाई मैंने सब बेच दिए। कब बेचेंगे इसको? अपने 4600 के हाईवे पे ये निकल चुका है। अब 4600 डायरेक्ट नहीं जाने वाला है, बीच में अपॉर्चुनिटीज आएगी। एक मिनट सर, इसकी बाइंग रेंज भी अपग्रेड होगी ना? अपडेट होगी ना, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे लिया वैसा मजा आएगा क्या? नो। हाँ, ये पूरे करेक्शन में एसआईपी किया है लोगों ने। इन लोगों को तो अभी फायदा। मैं यही आप लोगों को समझाने का प्रयास करता था कि बहुत लोग कहते थे पीयूष भाई ब्रेकआउट के बाद लेंगे। लो अभी ब्रेकआउट के बाद लो, कब हाथ में आएगा तुम्हारे? ब्रेकआउट के बाद तो पूरे ट्रेडर लेने आएंगे। हम तो वेल्थ क्रिएटर है, वो लेने आए उससे पहले जगह बना के बैठने की और बोलने का अब तुम फुटबॉल से खेलो। अब हम नहीं आने वाले, तुम ही खेलो इन शेयरों से, क्योंकि वो ट्रेडर खेल खेल के इसको 4600 ले जाएंगे, राइट? मुनीर, जैसा निफ्टी में हमने निफ्टी का टारगेट 15400 रखा, फिर हमने उसको घटाया भी सही 15200 बुलिश एंगल्फिंग को देख के। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म 6-12 महीने का टारगेट तो 15200 ही बनता है। उस प्रकार से मुझे अगर एलटीटीएस का टारगेट जानना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा मुनीर? अभी सर ये जो बड़ा कैंडल बना है उसका पिवट गिन लेते हैं और करेक्ट एकदम। तो मेरे को आने वाले 6-12 महीने का भी टारगेट मिल गया है ना? S1 देख लेने का। अब जरूरी नहीं S1 आए, पर आता है देन इट्स वेरी गुड, राइट? जो भी ट्रेडर रिपोर्ट्स आता है मेरे को एक्टिव रहना पड़ेगा। ये सब डायरी में लिख देने पड़ेंगे कि एलटीटीएस कुछ भी करेक्ट हुआ बाजार, मेरे को एलटीटीएस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इसने, जैसे हम बड़ौदा से बॉम्बे के हाईवे पे निकलते तो जैसे हाईवे पे आ जाते हमारा गोल तय है कि बॉम्बे पहुंचेंगे। उसी प्रकार से एलटीटीएस जो हाईवे पे आया है, वो हाईवे कहां पे जा रहा है? 4600। डन।
सर इसका वॉल्यूम को इफेक्ट डालेगा इसको नेक्स्ट फ्यू मंथ के लिए? अभी आया ही नहीं है, अभी वॉल्यूम का कैंडल ही नहीं बना है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा वो, बराबर। देखो इसको मैं वीक में कन्वर्ट करता हूं, क्या लगता है आया होगा वॉल्यूम? हाई वॉल्यूम, बराबर ना, ह्यूज वॉल्यूम आया है इधर, जबरदस्त। ये वॉल्यूम किसने दिया है पता है? ऑटो के डेटा आए जो अच्छे आए, और एलटीटीएस का ऑटो के साथ कोई लेना देना है कि नहीं है? ये आपको सेगमेंटल रेवेन्यू से पता चलेगा कि एलटीटीएस के सेगमेंट कौन से है धंधे के, राइट। जिस दिन मारुति के Q2 के रिजल्ट आने लगे, जिस दिन ऑटो के डेटा आने लगे कि पिछले साल के Q2 से इस साल का Q2 बढ़िया, उस दिन से एलटीटीएस ने धमाल करनी चालू कर दी है, बराबर है। सो दिस इज द वे यू कैन सी। नौकरी क्या कर रहा है विनोद भाई? देखो आपने एक एक चुन चुन के हीरो लिए थे, है ना। दिस इज योर naukri.com, कमाल कर दिया इसने, एकदम जबरदस्त। टूटा था क्या ये कोरोना में? टूटा था सर। वही है ना नौकरी। यस सर, बराबर है। मंथली चार्ट लीजिए। हाँ राइट, ओके। आपने बोला कि इसने 5वें महीने में ब्रेकआउट दिया। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने जब कॉल बनाए तो कुछ शेयर ने 5वें महीने में ब्रेकआउट दे दिया था, है ना। वो निफ्टी से भी एडवांस थे। तो अब आपको परफॉर्मेंस में पता चला कि जिसने निफ्टी से पहले बैंड ऑफ द ट्रेंड दिया, उसने निफ्टी से पहले ब्रेकआउट दिया, और वो चल के किधर चला गया? ह्यूज रैली, राइट। पोजिशनल ट्रेडिंग का चित्र क्लियर हो रहा है दोस्तों? यस सर। अब मेरे को सबसे पहले ये बताओ, हमें रेगुलरली किसको बेंचमार्क की तरह ट्रैक करता रहना चाहिए? निफ्टी, क्योंकि निफ्टी के पीछे ही सब इंडेक्स आ रहे हैं। मैंने बेंचमार्क की तरह निफ्टी को ट्रैक किया, राइट। अब मुझे, अगर मैं गिर रहा हूं, बाजार गिर रहा है, तो सबसे पहला मेरे को बाइंग सिग्नल कौन देता है कि अब बाजार में तेजी आई? प्रीवियस मंथ लोगों को ब्रेक करेगा तो। हाँ, पर मैं तो वही कह रहा हूं कि बाजार रोज गिर रहा है, रोज गिरता जा रहा है, पर मेरे को कौन ट्रिगर करेगा? हु विल टेल मी अब बाजार चलेगा? निफ्टी करेगा सर। बेंड ऑफ द ट्रेंड, ब्रेकआउट, बेंड ऑफ द ट्रेंड सर। एंड ऑफ द ट्रेंड, ब्रेकआउट तो बाद में आएगा, है ना। ब्रेकआउट को तो दे रहे हैं, पहले आता है बैंड ऑफ द ट्रेंड, जिधर हमें माल उठाना है। तो सर फिर आता है, यस क्या कह रहे हो? कौन सा सेक्टर पहले बैंड ऑफ द ट्रेंड देगा, उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे? वो एकदम इंपॉर्टेंट है, वो पूरे तेजी में चलते हैं, है ना। वही तेजी को, वो निफ्टी को रास्ता बताते हैं कि भाई तू मेरे पीछे पीछे चल, राइट। सो वी हैव टू फोकस ऑन लीडर्स एंड नॉट लैगर्स। देयर आर लीडिंग इंडेक्स, देयर आर लैगिंग इंडेक्स, और बीच में है निफ्टी, राइट। If we are watching leading index, then yes, these leading index are going to lead the rally, correct? So my first buying level was band of the trend. Just a minute. Okay. Your Okay, can you see this board? Right? आशा रखता हूं आप लोगों को दिख रहा है। See, market was falling. सबसे पहले मुझे बाइंग सिग्नल किसने दिया? बैंड ऑफ द ट्रेंड, राइट। बैंड ऑफ द ट्रेंड is your buying signal, BOT. You have single focus on target.
this was your target, right sir? Done? तो आपका ये टारगेट था, पहला मौका आपको लेना था बैंड ऑफ द ट्रेंड का. इफ यू हैव मिस्ड दिस बैंड ऑफ द ट्रेंड, तो आपको कब मौका मिलने वाला था बताइए? ट्रेडर्स रिमोर्स. यस, किसने बोला ये? वेरी वेरी गुड, वंडरफुल. आफ्टर बैंड ऑफ द ट्रेंड यू मे सी ट्रेडर रिमोर्स. फिर टारगेट. अब टारगेट आ गया, यहां पे लेने जैसा मजा आएगा क्या इधर? नहीं, राइट? दिस वॉज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. हियर देयर वॉज लो रिस्क, राइट? अब अगर शेयर ने इधर ये करेक्शन के बाद ब्रेकआउट दे दिया, नाउ व्हाट विल हैपन? अब आप सीधा टारगेट क्या करोगे? एक्सटेंशन. It should be so simple like this what we are talking, right? Clear ekdam? What will you expect? Your leading stock are going to come till this old resistance for support. Yes, anybody? Your leading stock are going to come till your previous resistance to take support? No sir. No, absolutely. समझ जाओ. You read any of the technical analysis books. आप कोई भी किताबें पढ़ो, आपको ये बताया जाएगा कि पुराने जो सपोर्ट है वहां पे आपका शेयर सपोर्ट लेने आता है. पुराने रेजिस्टेंस पे क्या लेने आता है? सपोर्ट लेने आता है. तो लोग ये सपोर्ट पे बाय करके बैठे रहते, पर शेयर आता नहीं है. क्योंकि आप अगर लीडर में हो तो आपके लीडर शेयर सपोर्ट पे आने से पहले ही पलटी लगा देते हैं. करेक्ट? तो इसके लिए तैयारी रखने की. आपका हर शेयर पूरा करेक्ट नहीं होने वाला है. माइंड इट, बिकॉज यू आर वर्किंग इन स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक. पहले से पलटी लगेगी and your stock will move towards extension. बीच में जब जब मौके मिले, अब मौके कैसे देखोगे? मौका नंबर 1 कब मिलता है लेने का? कब एक्टिव हो जाएंगे लेने के लिए वापस? बैंड ऑफ द ट्रेंड ढूंढेंगे. बैंड ऑफ द ट्रेंड. तो बैंड ऑफ द ट्रेंड के लिए तो टूटना तो पड़ेगा ना, है कि नहीं? बैंड ऑफ द ट्रेंड कब आएगा? फॉल में, राइट? अब मान लो आपका शेयर ऐसा था, जबरदस्त चला, अब ऊपर से नीचे का बैंड ऑफ द ट्रेंड आया. अब क्या? लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो. अब क्या बताओ? अब एसआईपी चालू. एसआईपी चालू. अब अपना पोजिशनल ट्रेडिंग वाला काम थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा. बराबर की नहीं? जस्ट एकदम लॉजिकल थिंग्स. अब ये टूटने दो इसको. तेरे को टूटना इतना टूट. तू अपने सेक्टर की बेस्ट कंपनी है, मैं तेरे को लेने ही वाला हूं, राइट? अब यहाँ पे अगर बैंड ऑफ द ट्रेंड आया, अब आप एसआईपी करने बैठोगे? वही रूम है, हॉल है. यहाँ पे हम बड़ी गेम खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते? के अंदर रखे उसको बर्फ की. यही रूम में रखे. लोग खड़े क्या बाहर? मैंने सबको म्यूट कर दिया है डिस्टरबेंस की वजह से, राइट? अब जब बैंड ऑफ द ट्रेंड आ चुका है, देन यू शुड बी एक्टिव फॉर ट्रेडिंग, कि अब पैसा कमाने का टाइम आया है. कुछ लोग रोज यहाँ पे ट्रेडिंग कर करके पैसा खोते थे. उनको लगता था नहीं कैश अच्छा नहीं है, फ्यूचर करते हैं. फिर फ्यूचर में खोने के बाद बोलेंगे ऑप्शंस करते हैं. ऑप्शंस में खोने के बाद वापस कोई ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, बोलेंगे वापस कैश. तो उनकी गेम चलती जाएगी ऐसे. मेरे को 15-15 साल से लोग मिले हैं, जो लोग अभी भी गोल 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 घूमते जा रहे हैं. हर 6 महीने नई स्ट्रेटेजी आती है. भूल जाओ सारी स्ट्रेटेजी, एकदम सिंपल रखो. बरसात से पहले बीज बोने हैं, राइट? जो किसान करता है. और जब फल लग चुके हैं तो उसको तोड़ने हैं. कितनी सिंपल चीज है. तो जब फॉल आ रहा है एकदम लॉजिकल बीज लगा लो, एसआईपी करते जाओ.
फल लगते हैं एक्सटेंशन पे। किधर लगते हैं फल? एक्सटेंशन पे। थोड़े थोड़े बीज फ्रूट्स लेते जाओ, राइट? यहां पे यू आर बिकमिंग एग्रेसिव इन ट्रेडिंग। दिस इज योर टारगेट नंबर 1। कितना बुक करेंगे? 5%, राइट? लेकिन मेरा शेयर ऐसा है, ये सेक्टर में और कोई चॉइस नहीं, यही सबसे अच्छा है, लेकिन डेप्ट है, मार्जिन कम है, तो हम क्या करेंगे? हम थोड़ा ज्यादा बुक कर सकते हैं। अभी आप में से किसी ने बोला था ना 10%, यस वी कैन डू 10%। दिस ऑल थिंग डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, and the level of confidence will be higher in high quality stock, no doubt about it, right? Something you are going to understand after gaining some experiences. Okay, so let me clear it here. Yeah, now I am clearing all my drawings. I hope that you are doing wonderful work in accumulating the stock. I hope आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो टारगेट के केस में, राइट? यू आर बुकिंग प्रॉफिट्स एट टारगेट। मैंने कल ही जेएसडब्ल्यू स्टील में कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया। क्यों किया होगा? यहां पे 5% नहीं किया, यहां पे ज्यादा किया। वाई? समझ में आ गया? नहीं चल रहा सर। हाँ, सेक्टर नहीं चल रहा सर। अब ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है मेटल। बराबर। मेटल में सबसे अच्छा जेएसडब्ल्यू। मेरे पास तो बरसों से थे इधर के, ये जो ब्रेकआउट आया ना उससे पहले के मेमा वाले, राइट? भगवान की दया से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद जबरदस्त तेजी आई, वापस मेमा आया, तो मेरे को जो मौका इधर मिला था, क्या ये मौका मेरे को इधर छोड़ना था? एड, तो जो बीज लगे इधर, उसके फल हम कहाँ खाएंगे? अब तो टाइम आया है अपने टारगेट का, राइट? सो 5-10% बुकिंग बनता है इधर। एक बार ब्रेकआउट दे देगा तो चलो अच्छा है, नहीं दिया तो वापस करेक्शन मोड में आ जाएगा, करेंगे बाय उस समय, बराबर ना? पर स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल रखो। ड्यूरिंग फॉल, ड्यूरिंग करेक्शन मोड वी नीड टू accumulate. During this band of the trend we can be active in positional trading, and during targets we are eating fruits. होशियार इन्वेस्टर को पता रहना चाहिए कि मेरे को ट्रेडिंग कब करना है और मेरे को एक्यूमुलेट कब करना है। ये दोनों चीजों का डिफरेंस मेरे को पता रहे, राइट? यस प्लीज, क्या कह रहे थे? वन क्वेरी। यस प्लीज सर, जब आपको मालूम है कि स्टील सेक्टर निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, स्टील इंडस्ट्री इज नॉट ग्रेट, व्हाई वुड यू नॉट सेल ऑल जेएसडब्ल्यू स्टील एट दिस लेवल एंड इन्वेस्ट इन सम अदर ग्रोइंग सेक्टर्स? व्हाई वुड यू स्टिल कीप इट? करेक्ट। See, I was accumulating this company when there were no other industries like restaurants, department store, ये सब कुछ था ही नहीं। ये वो टाइम से हम लोग मेटल में इन्वेस्ट करते थे, राइट? अब वो टाइम पे राजीव भी देयर वाज ओनली टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील टाइप ऑफ कंपनीज। तो उस समय हमने वो सबको अवॉइड करके जेएसडब्ल्यू लिया कि भी वो टाटा स्टील में तो नहीं जाना है, नहीं तो मरेंगे हम, इससे बेहतर है जेएसडब्ल्यू में लो। अब जेएसडब्ल्यू वी आर ऑलरेडी होल्डिंग एट वेरी गुड प्राइस। मेरे को अंडर परफॉर्म कर रहा है, उससे मैं 100% एग्री हूं। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय, राइट? बट एज वी आर हैविंग एट वेरी लो कॉस्ट, एंड यस I expect that steel industry is also going to grow by 10-12%. Right. इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा रहेगा, खराब नहीं रहेगा, बराबर? आने वाले समय इंफ्रा में बढ़िया काम होंगे राजीव भाई, पर प्रॉफिट इसमें इतना नहीं होगा जितना मेरे को बाकी इमर्जिंग में होने वाला है। तो मैं ये अपना वेटेज बढ़ाता नहीं, मेरे पास ये पहले से 2% के है, ये मैं कभी भी इसको 5% कभी नहीं ले जाऊंगा। 5% किसको ले जाएंगे? अभी आया ना नया LTTS, क्योंकि वो मेरे को 20% CAGR देगा, यहाँ पे उतना नहीं मिलेगा, राइट? सो बी क्लियर, आप लोगों को नहीं इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बराबर है? बिकॉज यू हैव बेटर चॉइस। अभी ये कैम्स आया, कैम्स
LTTS का तो चार्ट देख लिया आप लोगों ने, और मेरे को लगता है योर आइडिया शुड बी क्लियर कि ये सेक्टर कैसा दौड़ने वाला है, राइट? आपने केम्स का देखा कि नहीं देखा चार्ट? ये कौन सा महीना है? दिसंबर महीना है, राइट? इसको आप ऐसे डेली में भी करोगे तो देखो इसमें ब्रेकआउट तो इधर ही दे दिया था। मतलब केम्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं तो दौड़ूंगा, अब हाथ नहीं आऊंगा, राइट? ये सारी कंपनियां, जो कंपनियां ब्रेकआउट्स दे रही है, केम्स का ग्रोथ बहुत अच्छा है, राइट? आपने अगर रूट मोबाइल देखी हो, इनका ग्रोथ 50% का है, दिख रहा है? कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ये सारे शेयर में, बराबर की नहीं? अब इसका कोई चार्ट है क्या इधर? कैन यू सी चार्ट ऑफ रूट? नहीं है, पर आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने चार्ट ड्रॉ कर लिया है रूट का, कि कैसा ड्रॉ किया है पता है? बताने दो 1 मिनट। आप एडवांस में चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया रूट का कि अभी रूट ऐसा चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ये मेरा टारगेट है। कितना लिखा? 4000। इसको कौन रोक सकता है? ये क्यों नहीं आएगा? देखो, why we should be confident? इसके सबके आंसर आपको किधर से मिलेंगे पता है? एक ही जगह है। 1 मिनट। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार्ट देखने के बाद आपको पता चले। ये आपका रूट मोबाइल है, 500 करोड़, 850, 1000 करोड़ धंधा बढ़ रहा है, डबल। इस साल कितने परसेंटेज से धंधा बढ़ा पता है? 55% से, राइट? कोरोना चल रहा है, मंदी चल रही है, डेब्ट फ्री कंपनी, कंसिस्टेंट कंपनी। मेरी क्या उम्मीद है? 2030 आते आते 165 का ईपीएस, 4000 का टारगेट। तो चार्ट तो ड्रॉ हो गया। हाँ विजय भाई, चार्ट ड्रॉ हुआ कि नहीं? दिस इज द वे। आपको एडवांस में पता रहे ये सब होने ही वाला है, तो ये सब में पोजीशंस बननी चाहिए, राइट? सर यस, चार्ट तो ड्रा हो गया, ठीक है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए। रिक्वेस्ट ये है कि हमने जब आपने ये बंद कर दिया था अपना पोजिशनल ट्रेनिंग की वीडियोस और अपना ये कॉन्फ्रेंस लेना, उसके बाद हमारा पी चैप्टर क्लोज हो गया था। पर क्या करते अब एक्टिव रह के विजय भाई? देखो, जब एक्टिव रहना था तो रहना था, वो समय पे ही मान लेना था। अभी रोज ये सब देख के क्या करेंगे? अपने लमाल ले लिया, अभी चलने दो इनको। नहीं सर, आपका टारगेट आया क्या एलटीआई का? मेरा तो सर, मैं तो उस एफएल का लिया था, वो चल रहा अभी। पर आया उसका टारगेट? हाँ, टारगेट तो एक आ गया, तो लेकिन अभी और आगे के बाकी हैं। अभी बाकी है तो चलने दो। अभी इसमें क्या है कि ये सारी चीज ऐसा नहीं है कि हमको रेगुलरली इनके पीछे पड़ते जाओ। मैं खुद नहीं देखता हूं, राइट? अपने लिए क्या है ये समझना जरूरी है कि मेरे को कौन से समय पे कौन सा हथियार उठाना है। हमने क्यों वो समय पे पोजिशनल ट्रेडिंग किया? लोग तो हमारे पीछे 1 साल से पड़े हुए थे, पीयूष भाई ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग कर रहा है। अरे शांति रखो, क्या ट्रेडिंग करना है? ट्रेडिंग करने का टाइम आएगा तो अपन ट्रेडिंग करेंगे। क्यों ये टाइम पे अपन ने पोजिशनल ट्रेडिंग किया? क्योंकि बैंड ऑफ द ट्रेंड आने वाला था, बराबर विजय भाई? अब तो हम रैली में, देखो आप लोगों ने इधर एफएल ली है ना? दिस वाज द टाइम व्हेन यू बॉट एफएल। अब एफएल किधर है? हमने वो लाइन ड्रॉ की थी विजय भाई, इधर की ये वाली। अभी तो बहुत टारगेट बाकी है। वो गब्बर सिंह वाला डायलॉग है ना, अभी तो बहुत जान बाकी है। तो वही है इधर, अभी तो बहुत जान बाकी है। अभी क्या करेंगे इसको देख देख के? बोलो विजय भाई, जाने दो। नहीं सर, आपसे बात हो जाती है ना तो इतना रिफ्रेश हो जाता है। बराबर है। अभी क्या करें? देखो, आप लोगों को मैं आज ये बताना चाहता था
कि आपने जो आप हर एक की स्प्रेडशीट ओपन करो, आप लोगों ने जो जो सोचा था वैसा ही हुआ है। किसी की भी स्प्रेडशीट, ये मैंने जय किशन जी की स्प्रेडशीट ओपन की, देखो जय किशन जी ने 1275 का टारगेट बोला था। HDFC हो, कोटक हो, मेरे को कुछ तो बताओ जहां पे वो गलत हुए, राइट? क्योंकि आप लीडर में थे। तो इसी प्रकार से बढ़ते जाओ। यू आर ऑन अ राइट पाथ ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग। डोंट गो आफ्टर नेम कि फ्यूचर करना है, ऑप्शन करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, नाम में कुछ नहीं रखा है। वो चीज करे जो कंफर्टेबल हो, जहां पे रिस्क हमें पता रहे, राइट? आज का हमारा टॉपिक सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग पे था, तो मैं चाहता था थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग हमारा एकदम क्लियर हो जाए, पर आपका ऑलरेडी एकदम सिंपल है। हर एक व्यक्ति का मैंने देखा, मैंने आप सबके चार्ट ओपन किए, जितने भी लोगों ने, आप लोगों ने कॉल बनाए थे, वंडरफुल यार। देखो सबकी बेहतरीन कंपनियां। मेरे को ये नहीं पता आप लोगों ने पोजीशन बनाई थी कि नहीं बनाई थी, नहीं तो आप बोलोगे यार अपने कॉल पे पोजीशन नहीं बनानी है, पोजीशन तो मैं वो CNBC वाली बनाऊंगा। इनका पता नहीं टारगेट आए कि स्टॉप लॉस आए। पीयूष जी, एक्चुअली हनुमेश यार, वो हम लोगों ने हनुमेश। बस उस दिन एक्सरसाइज में उस दिन हम लोगों ने किया था, बट एक्चुअली आप जैसे बताया हम लोगों ने वी डिड नॉट टेक पोजीशन इस टाइम पे, क्योंकि और उसके बाद हम लोगों ने, जैसे विजय भाई भी बोल रहे थे, हम लोगों ने ज्यादा उसके ऊपर काम नहीं किया। बराबर है। We were not confident, sir. We were not confident on that. So we have done Yeah, that. but इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, because we went through one Now down we cycle. now we are getting some confidence. Yeah. You should अगली बार से not be confident. कभी भी कोई ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर मैं हर एक ट्रेनिंग में से कॉन्फिडेंस ले लूंगा एंड आई विल इन्वेस्ट माय हार्ड अर्न मनी और अच्छा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? सो डोंट टेक मी रॉन्ग, पर कॉन्फिडेंस नहीं ही आना चाहिए, बराबर है? लेकिन आज मेरा आप सबसे मिलने का पर्पस ये था कि आप अब अपनी चिट्ठियां खोलो जो आपने उस समय बंद करके रखी थी, और अब आने वाले समय का फायदा उठाओ। अभी तो शुरू हुई है निफ्टी की कहानी। करेक्शंस आएंगे, रैलीज आएगी, बहुत सी चीजें, बहुत से मोड़ आने हैं, फॉल भी आना है, रैलियां भी आनी है। पर आपने जो काम किया है वो परफेक्ट है। इस काम को आगे लेके बढ़ते जाइए। किसी की जरूर नहीं है आप लोगों को, राइट? हाँ कहिए कहिए कहिए। सर दो स्टॉक के चार्ट करो ना, अब UBL और TTK प्रेस्टीज। ओके, एक मिनट। UBL, ओके, यस सर। सर ये अपने सेक्टर का वैसे तो ये लीडर है, लेकिन काफी देर से ये कंसोलिडेट कर रहा है इसको। बराबर है। हम मतलब कंफ्यूजन कहाँ है यहाँ पे विकास भाई आपको? हाँ जी सर, कंफ्यूजन मेरे को इसकी क्वालिटी पे तो कंफ्यूजन नहीं है, मेरे को बस यही है कि वैसे तो मैंने पोर्टफोलियो में इसको ऐड किया हुआ है, तो इसको मेरे को है कि और ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी कितना परसेंटेज है? 5% है सर अभी। बराबर है, उतना 2% रखो, उतना ही बराबर है ये, बराबर ना? उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। TTK प्रेस्टीज 5300 के पास एक्यूमुलेट किया है। आप ज्यादा जा सकते हो, 4-5% जा सकते हो। सर वो भी 5% है। राइट, ओके। इसका सर एक बार चार्ट चेक करना प्लीज। यू सर, भाविन हियर। या भाविन भाई एक ही मिनट। भाविन भाई, ये जो चार्ट आप लोगों के सामने जो खुला है UBL का, ये UBL का चार्ट आपको क्या कहानी कहता है? इसका बैंड ऑफ द ट्रेंड कब आया था? इधर आया था, राइट? नवंबर। या फिर ये ट्रेडर रिमोट तुरंत ही आ गया। नॉट सो कॉन्फिडेंट लाइक व्हाट यू सॉ इन अदर स्टॉक्स, राइट? पर आपका क्या स्टॉप लॉस आया इधर? नो सर। तो मतलब ये ट्रेडिंग में अभी भी स्ट्रांग है।
where your UBL is approaching towards here, right? तो आपका ये कॉल है, your buying level, your stop loss and your target for trading. पर SIP वालों को करना चाहिए SIP इधर. Sir, sorry to disturb you. Sir, Yeah. please explain me once again the stop loss now. So which stop loss you have to take? This Previous one, sir. month, previous months or? No, not previous month, sir. Band of the trend का जो पूरी range है उसका lowest low. Okay, yeah. है ना? Now okay. Yeah. So for trading I am telling you, मान लो trading के लिए आपने ₹1,00,000 डाल दिए, तो आपका stop loss ये है, target ये है, right? पर सर ये इसमें BTST टाइप का नहीं देखना चाहिए कि ऊपर 50 मेमा मिले का रेजिस्टेंस नड़ेगा? वो तो हमेशा नड़ेगा हर एक शेयर में. वहीं से बैंड ऑफ द ट्रेंड आएगा ना हाँ, भाई, तो बैंड ऑफ द ट्रेंड में हमेशा मेमा ऊपर ही होगी. ओके, बराबर ना? बैंड ऑफ द ट्रेंड में, क्योंकि आप नीचे से ही लेने वाले हो बैंड ऑफ द ट्रेंड. बराबर. ओके पीयूष सर, मुझे सर परिमल यार सर, एक्सटेंशन का वो जो टाइम फ्रेम गिनते हैं वो जरा समझना है. बता देता हूँ. मेरा अभी बात चल रहा था टीटी के प्रेस्टीज का. किनके साथ चल रहा था? 2 शेयर. हाँ, विकास भाई का. आपने 2 शेयर जो मेरे को बताए, UBL और टीटीके का चार्ट क्या कहता है आपको विकास भाई? सर इसको बाय तो मैंने कम्युलेट तो सर किया हुआ है, नीचे के 5300 पर किया हुआ. ये हो गया आपका करेक्शन मोड परफेक्ट एकदम. हाँ, राइट. बैंड ऑफ द ट्रेंड किधर है? इधर है. यस. राइट. ये आपका रिस्क जोन है. राइट. पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यही है बाइंग लेवल. आपका टारगेट क्या है? 7200. बराबर की नहीं? देखेंगे हम 3-4 महीने में 7200. हाँ जी सर, काफी स्लो चल रही है दोनों स्टॉक. स्लो चल रही है. ये टीटीके है, UBL है, ये सब इंडस्ट्री के ग्रोथ कैसे अभी नहीं अच्छे हैं. ये बेसिक नेसेसिटी वाली प्रोडक्ट नहीं है, ये दूसरी प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे स्लो है. राइट. ये IT जैसा नहीं है. ओके. पर टीटीके में SIP करते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बराबर ना? यस परिमल भाई बोलो. जैसे सर परिमल यार सर, या प्लीज. मैंने एक क्या मैसेज डाला सर, पढ़ लो ना अगर मेरा आवाज नहीं आ रहा है तो. अभी आ रहा है, एकदम क्लियर आ गया आवाज. ओके. ब्रिटानिया अपन जब कोर्स कर रहे थे ना सर, तो ब्रिटानिया ने ब्रेकआउट दिया था उस टाइम. ओके. हेलो, ये आपका ब्रिटानिया, ये मैंने ब्रिटानिया यहाँ पे कर दिया. ये था आपका बैंड ऑफ द ट्रेंड. राइट. और आपके ब्रिटानिया ने ब्रेकआउट दे दिया था. बराबर है. अभी ये ब्रिटानिया किसमें चल रहा है? क्या कर रहा है? साइडवेज है. साइडवेज. ट्रेडर रिमोर्स में. सिंपल. तो ट्रेडर रिमोर्स है. करेक्शन इसका चल रहा है 3-4 महीने से. एक्यूमुलेट करो, नो प्रॉब्लम. बराबर ना? टारगेट क्या रखेंगे इसका? वही जो आपका पेंडिंग टारगेट है. हेलो, हाँ बोला. 8300 बोला. हाँ बोला. क्या 7-8. Okay, just let me check. Which correction time we should consider for extension? देखो अभी जैसे ब्रिटानिया है, तो ब्रिटानिया का ये पूरा करेक्शन मोड है, यहां से लेके यहां तक 21 महीना. बराबर ना? तो 21 मंथ तो इसको लगने ही चाहिए एक्सटेंशन आने में, पर मिनिमम 21 में और 50% हमने ऐड किए थे, याद हो तो 10, मतलब करीबन 3-1 साल लगेंगे इसके टारगेट आने में. 3 साल का आपका टाइम फ्रेम हो गया. राइट. डन. तो मेरे आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग
पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस पर ध्यान रखें। करेक्शन मोड और बैंड ऑफ द ट्रेंड, ये दोनों सिस्टम को समझे। प्लीज बी प्रिपेयर where you are supposed to do SIP. Here looking to Britannia, I am clear I should do SIP, right? Looking to Reliance, my mind is clear I should do SIP. Looking to DMart, my mind is clear from this month I will stop my SIP, क्योंकि इतने समय से SIP किया है, अब कमाने का टाइम आया है, बराबर ना? ओके, दिस वाज योर बायोकॉन। बायोकॉन क्या करेक्शन में है? नहीं आ रहा है, कंटिन्यू रैली नए नए हाई लगाता जा रहा है। सो यू विल नॉट एबल टू डू SIP ईयर। तो चलने दो, जब आपको करनी थी तब आपने बराबर माल इकट्ठा किया हुआ है। अभी इसको रैली मोड में है, लेट हिम रैली, राइट? सो डू दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। तेजी के समय में आपको ट्रेडिंग में अच्छे पैसे मिलेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग में, बराबर है। लेकिन हर एक शेयर जो ब्रेकआउट देता है उसके पीछे मत पड़ना, हर एक शेयर के पीछे मत पड़ना। लीडिंग स्टॉक ही देखना, जिसने ब्रेकआउट दिया वो सेक्टर का लीडिंग स्टॉक आपके पास होना चाहिए। अगर लीडर है तो बेहतर है, लीडर के अलावा की कंपनियां ब्रेकआउट देती है, ध्यान मत देना उनकी ओर, राइट? होप योर पोजिशनल ट्रेडिंग इज क्लियर। और मैं आप सबको एक एक्सरसाइज देना चाहूंगा। दो क्या एक्सरसाइज है? हाँ, यस सर दीजिएगा। एक एक्सरसाइज में देता हूं आप लोगों को। आप सबसे पहले आप लोगों ने जो काम किया था पहले, अपना खुद का होमवर्क, प्लीज चेक व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड 5 months बैक, राइट? लिस्ट बना दीजिए, ओके? एंड नाउ व्हाट वी शुड डू। अब ये समय पे अभी हमने कैसा ढूंढा, ये LTTS ढूंढा ना, लीडिंग कंपनी विद ब्रेकआउट, और अपॉर्चुनिटी देखे कि ऐसी कौन से सेक्टर है, कंपनी से कहां पे क्लियर हाईवे आपको दिख रहा है, राइट? बाइंग लेवल, टारगेट, स्टॉप लॉस, कुछ उन कंपनियों के भी अपडेट आपकी इसी शीट में कीजिए, पर यहाँ पे डेट लिख देने की। देखो मैं ये कंट्रोल, आगे डेट, तो नई डेट के साथ अपनी पुरानी स्प्रेडशीट में अपडेट कर लीजिएगा। कर लोगे इतना? हम लोग क्या करते हैं, ये जो टीम ए है, टीम ए में आप में से बहुत से लोग टीम ए में हो। टीम ए को क्या करना है, आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स ढूंढने हैं। आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स माने सारे इंडेक्स, निफ्टी के अलावा की जितने भी है, उनमें देखना है कौन सा इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा इंडेक्स निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट? आउट परफॉर्म कर रहा है तो उनके टारगेट क्या होंगे, वो कहां तक चलेंगे। टीम बी को एक और एक्सरसाइज देते हैं कि जो भी आउट परफॉर्मिंग इंडेक्सेस है उनमें लीडिंग कंपनियां ढूंढे, और अभी भी कहां पे अपॉर्चुनिटीज है बाइंग की, वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखे, टारगेट ढूंढे, स्टॉप लॉस लिखे। किधर लिखेंगे? अपनी ही स्प्रेडशीट में नीचे, राइट? क्लियर है ये चीज? टीम सी, टीम सी क्या करेंगे, बैंड ऑफ द ट्रेंड। क्या ढूंढेंगे? टीम बी को हमने बताया है जिन्होंने ब्रेकआउट दिए ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढे, LTTS जैसे, बराबर, TCS जैसे, जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया वो आपके लिस्ट में आ जाना चाहिए, बाइंग लेवल और टारगेट। टीम सी ने क्या करना है, टीम सी ने ढूंढना है बैंड ऑफ द ट्रेंड, ऐसी वाली चीज किधर है, राइट? जिसने अभी पलटी दी है, उनके स्टॉप लॉस, उनके टारगेट। जैसे एक मैं बताता हूं आपको, IRCTC कैसा है, चला क्या IRCTC? जुलाई महीने में जब हम काम कर रहे थे, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो
what we have expected that IRCTC will underperform in near term, और इसने underperform किया near term में, right? This company has underperformed. Why? क्योंकि एक महीना ऐसा नहीं है जब इसने हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज अपने पिछले हाई के ऊपर क्लोज दिया हो. Can you see any single one? Month it is here, sir. तो ये क्या कहता है आपको? करेक्शन मोड में है. So all those doing SIP can continue doing SIP, पर आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं है IRCTC में. कल ये महीने का आखिरी दिन है, इसीलिए अब मैं आप लोगों को याद करा रहा हूं कि कल का क्लोजिंग देखना कि IRCTC हाई के ऊपर देता है कि नीचे देता है. हाई क्या है? 1417. आज का क्लोजिंग क्या है? 1434. अगर हाई के ऊपर क्लोज देता है तो ये पहला महीना होगा when IRCTC closed above previous month high. वीकनेस रही तो ये नहीं देगा, राइट? उस केस में हम वापस लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बराबर है? योर आइडिया शुड बी क्लियर. बट इफ योर स्टॉक इज गिविंग यू अप ट्रेंड, जैसे यहां यूबीएल में मेरे को लग रहा है भी, जो हमने चार्ट जब ट्रैक किया तो हमने देखा यस पिछले महीने इसने वो काम कर दिया है, हाँ प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज रहा. सो योर कॉल इज नियर, नजदीक ही अभी तो इनिशिएट हो सकता है. बाय हियर, स्टॉप लॉस एंड टारगेट. ऐसी बैंड ऑफ द ट्रेंड वाली अपॉर्चुनिटीज टीम सी ढूंढेगी, टीम बी ब्रेकआउट वाली चीज ढूंढेगी और टीम ए आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स ढूंढेगी, राइट? कब तक कर लेंगे हम ये काम? 30 तारीख आखिरी है, 31 तारीख. टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, सो योर कैंडल विल बी कंप्लीटेड. होल मंथ इज गेटिंग कंप्लीट. 2 days. 2 days. ये तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, तुरंत हो जाएगी, राइट? आने वाले डैनी ने बताया 2 days. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम टुमारो टिल नेक्स्ट संडे इज योर टाइम. करते जाइए, ढूंढते जाइए, यू विल गेट सेवरल गुड अपॉर्चुनिटीज. हो सकता है आपको मारुति में मिले बैंड ऑफ द ट्रेंड. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, आप में से जो लोग बैंड ऑफ द ट्रेंड ढूंढ रहे हो, शायद आपको मारुति में बैंड ऑफ द ट्रेंड मिले, शायद आपको बालकृष्ण में क्या मिले. बालकृष्ण में और मारुति में क्या डिफरेंस है? ये क्या है? ब्रेकआउट. तो मारुति ज्यादा अच्छा चलेगा कि बालकृष्ण? बालकृष्ण. नो डाउट अबाउट इट, राइट? तो इस प्रकार के शेयर कौन ढूंढेंगे? टीम बी, राइट? टीम सी जो है HDFC में ब्रेकआउट मिलेगा शायद कल. अभी नहीं मिला लेकिन, है ना? अभी आया नहीं है. हाँ मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद रख सकते हो. लेकिन अभी एक दिन बाकी है. हाँ, एक दिन बाकी है, इसीलिए एकदम आपकी कातिल नजर है ना भाविक भैया, कंप्लीट एकदम. आप एकदम प्रोफेशनल बात कर रहे हो. क्योंकि मेरे को कुछ ऐसे लोगों के कॉल आए जो बहुत ट्रैक करते हैं सॉफ्टवेयर से, और उन्होंने बोला HDFC पे ध्यान रखे, शायद ब्रेकआउट दे दे. और आप विदाउट सॉफ्टवेयर मेरे को ये बता रहे हो. देखो हाई 2499, 2500 के ऊपर बंद रहना जरूरी है. कल कुछ ऐड किया इसमें, कल ही 2519 पे क्लोज रहा. देखो आज वीक था पर क्लोज ऊपर रहा, मतलब इसको क्या करना है? ऊपर जाना ही है, ऊपर जाना है. कल आखिरी सौदा है, लास्ट डे टू ट्रैक. कल अगर ये ऊपर रहा, इसका मतलब ये कि ईयरली क्लोजिंग इसने ऊपर दिया. फिर हमारा टारगेट क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन, राइट? तो करिए एक्सरसाइज, ओके? और हम आपकी एक्सरसाइज के बाद बात करेंगे वापस नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबल वेडनेसडे. ठीक है, राइट? कहिए सर. जय किशन here. Yes, जय किशन जी. Sir, one question, sir. I have one. हाँ, एक मिनट, जय किशन जी की बात खत्म कर देते. क्या सर, 1-2 दिन पहले मेरे से किसी ने पूछा था बिटकॉइन का. अगर आप बिटकॉइन का चार्ट खोलते हो
मैंने उसको टेक्निकल एनालिसिस करके बताया कि उसका टारगेट 75,000 का है. So I just wanted to reconfirm. जय किशन जी, बुलिश एंगल फिंग. हाँ, अगर मैंने इसका एक्सटेंशन ड्रॉ किया, अगर इसका एक्सटेंशन करते हैं तो 75,000 का टारगेट आ रहा है. राइट, कर सकते हैं जय किशन जी, पर ये बात भूलिएगा नहीं कि ये करेक्ट बहुत ज्यादा हुआ था. तो हमें अभी ये नहीं पता है कि क्या इसमें कोई और लीडर है जो कम करेक्ट हुआ था, है ना? ये लीडर है क्रिप्टो में. देखिए कितना टाइम लगा इसको, 3 साल, 36 मंथ, है ना? तो आप 36 3 के बदले 5 साल ले लो. हाँ, 4.5 साल. मैंने कहा 4.5 साल 75,000 का टारगेट. बराबर सोच सकते हैं बाखूबी, लेकिन बिटकॉइन पे ओपन सेशन में बात करना हिताव नहीं है अभी हमारे लिए, बराबर ना जय किशन जी? बाकी आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, है ना? थैंक यू सर. गुड जय किशन जी, मैं ये लेवल पे थे. हाँ सर परिमल. हाँ बोलो परिमल भाई. हम लोग टाइम पीरियड कैसा कैलकुलेट करेंगे सर? ये देखो अभी इसका किया ना हमने. एक प्रश्न मेरा ये था, ये बिटकॉइन यहां से लेके यहां तक करेक्शन मोड में चला, मतलब हम समझ जाए जब करेक्शन मोड आता है, बिटकॉइन 34 मंथ करेक्ट होता है, एक लंबा पीरियड है, राइट? तो तेजी में भी वो मंदी की असर रहती है. मिनिमम 34 मंथ, और इसमें 50% और ऐड कर दो. 34 + 17 कितना हुआ? 51, बराबर ना? 51. तो 5 साल एक्सपेक्ट करने चाहिए इसके टारगेट आने में, जो टारगेट जय किशन जी ने बताया. ऐसे ही करने का हर एक चीज. और एक कोई बैंड ऑफ ट्रेंड मिलता है हमें, हाँ. तो हम लोग उसको बाय ऑफ डे पे करेंगे, क्या मंथ का कैंडल पूरा होने के बाद तक रुकेंगे? देखो मंथ का कैंडल पूरा होने के बाद तक आ रहा है. मंथ का कैंडल पूरा होने तक रुकेंगे तो कंफर्मेशन हो जाएगा. आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, बराबर ना, पर कंफर्मेशन हो जाएगा. अभी हमने HDFC में कैसा देखा कि एक बार कंफर्म कर लेते हैं, फिर महंगा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा टारगेट बहुत दूर होगा फिर, बराबर ना? तो ये आपके डिसीजन कंफर्मेशन के लिए वीकली चार्ट पे जा सकते हैं. फिर हम लोग ट्रेडर रिमोर्स के लिए वेट करेंगे? नहीं, ये जो अभी विकास भाई ने बोला ना, ये बात उनकी सही है. डेली चार्ट, वीकली चार्ट का आप उपयोग कर सकते हैं. जैसे मैंने ये खरीदा था कैम्स, कब खरीदा था पता है? ये अभी आपने मंथली बुलिश एंगल्फिंग देखी, लेकिन मैंने मंथली कैंडल का क्लोज होने का वेट नहीं किया था, क्योंकि ये अपने सेक्टर की लीडर है, सारी प्रकार से ग्रोथ है, सब अच्छी कंपनी है, तो वैसे भी मेरे को लेना था. अब इसने जब पहले दिन ब्रेकआउट दिया, किधर दिया कौन बताएगा? ये कैंडल इधर, दिस वन, यहाँ पे दिया. 5-6 दिन बाद फुल कॉन्फिडेंस से यहाँ पे दिया. फिर बाजार जबरदस्त गिरा, और गिरने के समय उसने परफेक्ट S1 तक आया और बाइंग आ गया. मतलब ये क्या कहना चाहता था? मेरे को चलना है, राइट? तो यहाँ पे पोजीशन बना ली है हम लोगों ने, राइट? अब हम लोग क्या सोचेंगे, वैसे भी ये कैम्स हमें लेना था, 3% जितना होल्डिंग तो यहाँ पे रखना है, तो इट वाज गुड अपॉर्चुनिटी, लेके रख दी, राइट? अभी भी यहाँ पे तो शुरू हुई है, अभी तो बहुत इस फल में से जूस निकालना बाकी है, बराबर ना? ये तो अभी कैंडल बनी है पहले महीने की, अभी 10-12 महीने में ये कैंडल के भी तो टारगेट आना है, राइट? सो कैन एक्सपेक्ट ह्यूज रैली. Sir, this is Ravi Kiran, sir. Yes, yeah, Ravi. कहिए रवि जी. Yeah, regarding the IRCTC, sir. Yes. Yeah. So if it closes below the high of the previous candle, what should we do? So we should dispose all the holdings, or no? Why? See, not necessary. Why we should not dispose? Because there is nothing to do with close in
आवर पोर्टफोलियो। Okay. पोर्टफोलियो से तो रवि भाई कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, है ना? Only trading. Okay. Yeah, if this share will not close above its previous high, it means that correction is still continuing and we should do SIP और इकट्ठा करेंगे हम, मौका मिला है। Okay. And one. But you will not expect immediate rally. Okay. Right. And one more question, sir. Yeah. Yeah. All these principles can we apply for weekly and daily charts? See, I will not recommend. Okay. Yeah. Because monthly is best, but for assurity you can go with weekly and daily. मैंने कैसा अभी रवि भाई कैंप्स में किया? Yes. Because of this. Yeah. Sector leader. Okay. Yeah. Same thing. Even in LTTS, I have actually watched it in weekly. दिख रहा है आपको ये weekly में? Yeah. Right. So after this bullish engulfing last week, see you can see a good fall here. S1 पे आया था, बराबर ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन over the period of time आपके टारगेट दूर है, it's going to rally, right? But it's better for us if we are able to buy at lower range, right? Okay. So hope everybody will do. Last question, sir. Okay. Sir, one last question, sir. हाँ, yes, please. मुझे ये जानना था कि जब हम लोग कोर्स कर रहे थे तभी आपने बोला था कि जो ब्रेकआउट कैंडल रहता है लोग वो ब्रेक कर देता है तो फिर वो वहां से निकल जाना चाहिए। तो ब्रिटानिया में वही हुआ है ना सर, क्या नहीं हुआ? जरा एक बार देख लीजिए। ओके। हाँ, चलिए, इसका बैंड ऑफ द ट्रेंड कब आया था? बैंड ऑफ द ट्रेंड बहुत पहले आया था, लेकिन ब्रेकआउट जो दिया था उसने, वो ब्रेकआउट पे अगर हम लोग लेते हैं बैंड ऑफ ट्रेंड मिस होने के बाद। हाँ, ओके, करेक्ट। पहला अपॉर्चुनिटी बैंड ऑफ द ट्रेंड, दूसरा अपॉर्चुनिटी ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट इसकी इस कैंडल ने दिया हुआ है, राइट? और उस कैंडल के लो के नीचे बंद। एब्सोल्युटली। तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है परिमल भाई, आउट हो जाना चाहिए ना। करेक्ट। हाँ, ये आपके ब्रेकआउट लेवल के नीचे चला है, मतलब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी आप, बराबर की नहीं? अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिए हुए तो हमें कॉशियस रहना चाहिए, आपका करेक्शन और आगे चल सकता है। यस, वही जानना फॉर ट्रेडिंग, बराबर? तब ब्रेकआउट कैंडल मैंने इसलिए लिया नहीं। हाँ, करेक्ट सब एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्रेकआउट कैंडल सर, जो थर्ड वन ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कैंडल नहीं है सर? या ये वाली, दिस वन। सर इससे लास्ट वन, वो इसका क्लोज आई थिंक उसके ऊपर है। हां, दिस वन विल बी क्लोज ऊपर है ना सर? एक मिनट। 3584 3708, या ये कैंडल ने ब्रेकआउट तो दे ही दिया हुआ है ना परिमल भाई? तो ये सर टूटा नहीं ना, फिर ये ट्रेड अपना एग्जिट हुआ। विकास भाई की बात बिल्कुल सही है परिमल भाई। ओके, राइट सर, थैंक यू। ओके, तो ये वाला ले है, राइट, करेक्ट। सो होप एवरीथिंग विल बी गुड। क्रिएट योर वेल्थ पोर्टफोलियो and do Shanti wala positional trading, right? And everything will be good. Next week, do more practice on all these things which we have learned, and we will discuss again later. Okay? So thank you. Can I ask one more question? Yeah, please, Ravi bhai. Yes. I have already asked you. I should not ask once again. No problem, Ravi bhai. Ravi bhai, मेरे को एक बात बता देता हूँ खाली। आज चालू मीटिंग में मेरे बहुत फोन आए, नहीं तो कभी आते नहीं है। क्योंकि मैंने बीबी को बोला था छुट्टी है। ओके। और अचानक अपन ने ये मीटिंग रख दिया है। अभी फोन बंद नहीं कर सकता। बोलो रवि भाई। Can you make a group of this positional trading group, sir, so that we can discuss a lot? मैंने क्यों नहीं रखा है रवि भाई? क्योंकि ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, राइट? इससे कंफ्यूजन होता है बड़ा। लोगों के माइंड में ये हो जाता है रवि भाई की नहीं चलो ट्रेडिंग ही करते हैं, और बचना ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके वो ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की बातें चले, बराबर की नहीं? क्योंकि मार्केट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, एक्चुअली मार्केट इज फॉर वेल्थ। हम तो कुछ प्रॉफिट उसमें से निकाल रहे हैं,
तो हमारा ध्यान भटके नहीं, हम सब इकट्ठा हुए वेल्थ के लिए, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जरूर लेंगे। तो हमने ग्रुप नहीं बनाया, और आज इनफैक्ट आपको पता होगा हमने व्हाट्सएप के ग्रुप में आज की मीटिंग इसलिए नहीं डाला क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे वेल्थ की प्रो ट्रेडिंग, बराबर ना? Your vision is clear, sir. Yeah, absolutely. Wealth is number one. और जो लोग सीख रहे हैं ना रही भाई अभी, उनको लगता है कि मैं भी सीखूं ट्रेडिंग। अरे पहले आप वेल्थ सीखो, वेल्थ सीखोगे फिर ट्रेडिंग इजी है। डायरेक्ट ट्रेडिंग सीखने आएंगे तो वो फंसने ही वाले, बराबर ना? राइट, ओके। हाँ, यस प्लीज। सर एक क्वेश्चन था, जैसे सर ये तो सारे लीडर स्टॉक हो गए ना, इसमें तो हमें काम करना है जो बराबर है सर। इसके अलावा जैसे हम 52 वीक्स हाई देखते हैं, जो स्टॉक जाता है अपना सेक्टर लीडर कोई हमारे से छूट ना जाए, जो आपने बताया था, तो उसमें कई बार सर जैसे टेनला और साइबर टेक वगैरह स्टॉक जो है वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट टाइम में 10x वगैरह हो जाते हैं, उनको कैसे मतलब करना ही नहीं है ट्रैक? क्यों करना उनको ट्रैक? ये तो आप मेरे को यहाँ पे भी बोलते, दिख रहा है आपको कैसा चला था ये फॉल आपने नहीं देखा होता तो 5x टूटा कैसा? कोई भी शेयर जो ऐसा टूटे उससे दूर ही रहना चाहिए। वापस चला, इस बार वो वापस अभी कहां तक चल रहा है? उसने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ये इसने ब्रेकआउट क्यों दिया है पता है? क्योंकि इसका सेक्टर पूरा चल रहा है, पर ये अपनी आदतें नहीं छोड़ेगा। हाँ जी, वापस आएगा। हाँ, क्या काम है हमें इन सब कंपनियों का? कोई काम नहीं है, राइट? आप 10-15 साल बाद देखोगे तो ये सब शेयर वापस वही लेवल पे आ गए होते। अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंपनीज, राइट? इनका भाई कौन है? टनला का पीयर कंपनी, टनला की। सर पीयर कंपनी मैंने सर चेक नहीं की इसकी। ओके, कौन किसी को ख्याल है टनला का पीयर कंपनी? TCS नहीं सर, LTTS। हाँ नहीं, LTTS नहीं सर, ये तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स वाला है ना, LXC। हाँ, टाटा एलेक्सी। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, टाटा एलेक्सी। ब्रेकआउट दे दिया सर। आप इसका खाली रिटर्न चेक करो, ये 15 साल पहले 400 था, आज 700 है। समझ जाना चाहिए क्या रिटर्न मिला है हमें, बराबर की नहीं? अगर आप ये रैली कंसीडर करते हो तो ये फॉल क्यों कंसीडर नहीं करते हो, बराबर की नहीं? ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का कि हम खाली रैली देखें। लोग, विकास भाई, जितना रैली में फंसते हैं ना, उतना कभी फॉल में नहीं फंसते। लोग किधर फंसते विकास भाई? सिर्फ और सिर्फ रैली में ट्रैप होते हैं, क्योंकि रैली में फंडामेंटल भूल जाते हैं, राइट? देखो जहां पे आपका ट्रैक होने का ब्रेकआउट दे दिया सर। तो ब्रेकआउट तनला ने भी दिया, ब्रेकआउट इसने भी दिया, पर आप चाल समझो, ये 2008 में इधर था। अभी हमने यही देखा ना तनला का भी। तनला ने आज ब्रेकआउट दिया, टाटा एलेक्सी ने कब दिया? 2013 में। कितना अर्ली है? 7 ईयर्स, राइट? ये भी बार बार टूटा है, पर ये कभी पुराने लो पे नहीं आया, इसने हर बार नई तेजी की, राइट? ये उसका दूसरा ब्रेकआउट है और तनला का ये पहला ब्रेकआउट है, राइट? चलेगी तो सारी कंपनियां, ओके? बिकॉज़ भाई उस हिसाब से देखा तो ये भी 10x से ज्यादा हो गया। जबरदस्त हुआ है। मेरे पास ये 150 रुपए के पड़े हुए, 150 के, बराबर ना? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तनला ने डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि वो लॉस ही करती रही 10 साल से। ये 50% डिविडेंड दिया, इसका मतलब ये कि लाख डाला, लाख रुपया डिविडेंड में वापस भी आ गया इसमें, और ये वापस नहीं आएगा अपने लेवल से। हाँ, राइट, ठीक है, ओके। तो चलिए मिलेंगे वापस नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, ओके? चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। या
Thank you, bhai. Piyush bhai, thank you. Yeah. Good. Vijay, thank you. Yes. Thank you and happy new year, sir, in advance. Yeah. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Thank you, Piyush ji. Happy New Year in advance. Happy New Year. Happy New Year, Piyush bhai. Thank you, sir. Thank you, Yes, bhai. yes. And Happy New Year. Thank you very Happy much. New Year to Happy everyone. New Year to everyone. Hello.